أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے حکم سے سورۃ الطلاق کا دوسرا حصہ شروع کریں گے، اور مجھے اللہ تعالیٰ پر یہاں بڑی امید ہے کہ آج انشاءاللہ اس کو ہم مکمل بھی کر لیں گے۔ تو میں سیدھا اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ شریعت میں جو طلاق کا قانون ہے جو کہ سورۃ البقرہ میں بیان ہو چکا تھا، یہاں پر سورۃ الطلاق میں اس قانون کو مزید واضح کیا، لیکن اس کے ساتھ جو اخلاقی پہلو ہے اس کو بھی یہاں نمایاں کیا گیا، اور ساتھ نہایت تاکید کے ساتھ ان اخلاقی پہلوؤں پر زور دیا۔ یعنی کہ میں اس میں چھوٹی سی اپنی بات بھی ایڈ کر دوں کہ میں یہ سمجھتا تھا پہلے کہ طلاق سے متعلق اگر قانون پڑھنا ہے تو سورۃ الطلاق میں موجود ہو، کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے ویسے ویسے نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، جبکہ یہ دریا آج بھی موجود ہے۔ یہ ہماری کیپیسٹی کم ہے کہ ہم اس دریا سے کتنا علم نکالیں۔ تو یہی بات مجھے سمجھ میں آئی کہ سورۃ البقرہ کے اندر طلاق کا مکمل قانون بیان ہو چکا۔ سورۃ الطلاق اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے اندر مزید کوئی ایسی مرد سے خاص کر زیادتیاں نہ ہو جائیں اس کو واضح کیا، اور اس کے اخلاقی پہلوؤں کو بھی آگے رکھا۔ اور سب سے ضروری چیز جو آج میں انشاءاللہ تعالی اپنے رہے بیان میں آج ہم مکمل کریں گے، کیونکہ سورۃ الطلاق کا پچھلی دفعہ ہم نے پہلا رکوع مکمل کر لیا تھا، تو اب ہمارے پاس صرف 5 آیات ہیں جن کو ہم نے آج پڑھنا ہے، اور وہ 5 کی 5 آیات اسی بات پر زور دیتی ہیں کہ قانون کے اندر جو سب سے اخلاقی پہلو ہوتا ہے ہر قانون کا، اس کو آگے نہ رکھا تو قانون کی روح ختم ہوئی۔ اور زور جو اس پوری صورت میں دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وہ حدود، وہ حدیں، ان کو کراس مت کرنا کسی بھی صورت میں۔ تو یہ بات ہمیشہ سے ہمارے سامنے رہنی چاہیے ہر قانون کے لحاظ سے، کہ قانون تو قانون ہے، اور اس قانون کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا مذاق بنا دیا جاتا ہے، جب اس کے لفظی معنوں پہ تو عمل ہو رہا ہوتا ہے، مگر جو اس کی اصل روح ہے، جو اس کا اخلاقی پہلو ہے، جس سے ہمیں اس میں سے تمہید لینی چاہیے کہ اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یا ہم نے کس طریقے سے اپنی مزید زندگی گزارنی ہے۔ قانون تو قانون ہے۔ اس کی ایک دلیل میں انشاءاللہ تعالی اس صورت کے آخری حصے میں آپ کو بیان کروں گا کہ قانونی لحاظ سے ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مگر ہمارا کیا عمل اس کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ رہا ہے کہ نہیں؟ تو کیا قول اور فعل دو علیحدہ چیزیں ہیں کہ ایک چیز ہے؟ تو اللہ کے ہاں کون سی چیز افضل ہوگی؟ تو اس چیز کو ہی یہاں پر میں نے شروع میں ہی مد نظر رکھوا دیا کہ قانون کی اصل روح اس کو آگے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی مثال مجھے ملتی ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں وہ مشہور واقعات ابو الفاضل اور ابو الفاضی، جو کہ اکبر کے رتنوں میں سے شمار ہوتے تھے، اکبر بادشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی پیدائش 1/14/1551 اور موت 16/08/22 پہ ہوئی۔ یہ میں نے اس لیے ریفرنس آپ کے آگے رکھا ہے تاکہ آپ بھی اس چیزوں کو دیکھ سکیں گے، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ وہ ہر سال زکوٰۃ کے معاملے میں یہ کام کرتے تھے کہ اپنی کل دولت، جس کو 11 ماہ ہو جاتے تھے، وہ اپنی بیوی کے نام منتقل کر دیتے تھے تاکہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہ ان کو دینی پڑے، اور پھر بیوی کی ملکیت میں جب وہ 11 ماہ ہو جاتے تو وہ اپنے شوہر کے نام ہبہ کر دیتے، جو کہ شرط ہے زکوٰۃ کی۔ تو اس طریقے سے وہ زکوٰۃ سے بچ جایا کرتے تھے۔ اسی دوران مجھے ایک اور بھی معاملہ ملا،
कुछ सेठ लोग जो होते थे वो अपनी ज़कात को बचाने के लिए ये काम करते कि अपनी रकम मटकों में डालकर उसके ऊपर गंदुम रख देते और फिर किसी गरीब को बुलाकर कहते कि ये ज़कात ले लो। जब वो लेकर जाने लगता तो वो तादाद में बहुत ज्यादा थी, वो उसको लेकर नहीं जा सकता था, तो फिर उनको कहते कि यही जो गंदुम जो बाहर जाके तुमने बेचनी है ये हमें ही बेच, तो उसको चंद रकमों में खरीद लेते और उसके नाम उसको पैसा दे देते और इस तरह कहते कि हमने अपनी ज़कात दे दी, और मौक़िफ़ ये रखते कि हमने उसको उस रकम का या उस मटके का मालिक बनाया, उसकी मलकियत के बाद फिर हमने इससे खरीद लिया। तो इस तरह से ये तमाशे जो होते थे और ये वाक़यात मौजूद हैं, और इसकी वजह वही बात है रेफरेंस की, कानूनी लिहाज से 11 माह जिसके पास रकम रहेगी उस पर ज़कात लागू नहीं होगी, और जिसके पास 11 माह से ज्यादा यानी कि 1 साल हो जाएगा उसके ऊपर ज़कात लागू होगी। ये कानूनी लिहाज से तो माना जाता था, मगर जो इसकी असल रूह थी वो खत्म हो गई। तो इस किस्म के तमाशे हमेशा से होते रहते थे। तो इसी तरह लोग तलाक के बारे में भी इसको खेल बना लेते, और बाकायदा ये अल्फाज हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हैं कि अल्लाह की किताब के साथ तुम लोग खेल बनाते हो। तो जब तक हर कानून के साथ उसका इखलाकी पहलू सामने ना हो तो उस कानून को बज़ाहिरी पाबंदी तो हो रही होती है, लेकिन उसकी जो असल रूह है वो उसमें से खत्म हो जाती है। तो ये इंसान की जो आइली जिंदगी है और उसमें खास तौर पर तलाक का जो मामला है वो इतना अहम है, जो कि सूरह बकरा के अंदर मुसलसल 3 रकू आए, 27वें रकू के आखिर से लेकर 31वें रकू के शुरू तक यहाँ पर तलाक से मुतल्लिक आपको तमाम कानून मिल जाएंगे। जबकि वहां पर इस कदर इस बात की वजाहत कर दी गई थी, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इसके कुछ कानूनी पहलुओं को मजीद वाज़िया करने के लिए सूरह तलाक नाज़िल की। तो ये मैंने आपके आगे सूरह तलाक की कुछ अहम बातें आगे रख दी ताकि आपको ये वाज़िया हो जाए, क्योंकि मेरी हमेशा से ये कोशिश है कि जब आप ये कुरान मजीद पढ़ने लगें, समझने के लिहाज से, मुताले के लिहाज से, तफसील के लिहाज से, तो आपको ये इल्म हो कि असल में कौन सी सूरत क्या कह रही है। तो आप यही ना सिर्फ समझ लें कि कानून सूरत तलाक में ही है और इसका जोड़ा सूरत तहरीम है, ऐसा नहीं है। जोड़े के लिहाज से तो बात अपनी जगह वाज़िह है, मगर इसकी असल कानूनियत सूरत बकरा के 27वें रुकू से लेकर 31वें रुकू तक वाज़िह है। उसी की यहाँ पर मजीद वजाहत है इन 12 आयात। तो यहाँ पर यह बात जो नतीजे के तौर पर हमारे सामने आती है कि कितनी अहमियत है शरीयत के अंदर कानून तलाक की। यही वजह है कि जो हमने पिछले रकू में कुछ अल्फाज पढ़े थे इसकी अहमियत से मुतल्लिक, वतिल का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की मुकर्ररा करदा हदूदें हैं। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सा, जो कोई अल्लाह की मुकर्ररा करदा हदूदों से आगे निकले उसने खुद अपनी जान पर जुल्म किया। इसकी मजीद वजाहत मैं इस सूरह तलाक के आखिर में फिर बयान करूंगा, मगर ये बात अपने मद्देनजर रख लीजिए, इस सूरह तलाक का बहुत ज्यादा हिस्सा इस बिना पर है कि ये अल्लाह की मुकर्ररा करदा हदूदें हैं, और ये सिर्फ तलाक की हदूदों की बात ही मैं कर रहा हूं। अल्लाह ताला के बयान करदा हर अहकाम के ऊपर ये वजाहत है कि ये अल्लाह ताला की हदूद हैं जो आप पर नाफिज की गई। अगर आप उन अहकामात को, उन हदूदों को नहीं मानते तो आप अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, मगर ज्यादातर हिस्सा इसी बात पर आता है कि अल्लाह ताला के कानूनों को आगे रखो। ये ना समझो कि माना तो माना, नहीं माना तो ना माना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। ये बात यहां पर बयान की। तो असल में वही अपनी आखिरत बर्बाद करेगा जो उन अहकामात को हल्का समझेगा या ये समझेगा कि इससे मुझे कोई दुनिया में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि उन आयात में जितना जोर तकवा पे दिया गया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कोई अल्लाह ताला से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किलों में से निकालने के रास्ते बना देगा। मखरज मैंने पिछली दफा बयान कर दिया था। मखरज को अगर हम इजी वर्ड्स में लें, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी एग्जिस्ट, ऐसे मामला जिसके अंदर आपको कोई रास्ता ना मिल रहा तो अल्लाह ताला उनको भी निकाल देगा, उनको मखरज कहा जाता। तो यहां पर मैंने ये बात पहले भी कही, उसको दोबारा यहां पर दोहरा देता हूं
कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने ये बड़ी नेमत रखी है एक लिहाज से कि इससे इंसान को ये एनालिसिस कर सकता है कि मैं ईमान के किस दर्जे में हूँ, किस लेवल पर डिफॉल्ट कर रहा हूँ। कहते हैं कि जैसे अपने आप को चेक करना है कि क्या मुझ में अल्लाह ताला का तकवा है, दूसरे का क्या मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, क्या मुझे अल्लाह ताला के यहाँ आखिरत में खड़े होने का जवाबदेही का कोई खौफ है, इसकी चेक करनी है, टेस्ट करना है। इसका बड़ा आसान तरीका वो क्या कि वो कोई भी अमल करने लगे तो किस बात को सबसे आगे रखता है, अल्लाह के तकवे को या दुनियावी मामलात को। और इस चीज के लिए मैंने पिछली दफा मिसाल दी थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जब सामने समुंदर और पीछे फिरौन का लश्कर धूल उड़ाता हुआ आ रहा था, तो अल्लाह ताला ने वहां पर जो मखरज बनाया वो समुंदर को पार कर दिया। और उसके लिए मैंने वहां पर भी दलील दी थी कि तौरात और अंजीलों में बाकायदा वहां पर झगड़े होते थे, उनका जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ झगड़े किए गए कि आपने हमें किधर फंसा दिया। वहां थे, चलो कम से कम जिंदा तो थे, मारे खाते थे पर जो भी करते थे, मगर कम से कम जिंदा तो थे, आपने तो यहाँ पर हमें बिल्कुल ही मरवा दिया। तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मखरज पैदा करेगा, और दुनियावी लिहाज से वो मखरज आज हमारे लिए क्या है, वो यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। तो ये असल में तरगीब का अंदाज है, समझाने का अंदाज है, प्यार का अंदाज है। लेकिन सूरत तलाक का जो दूसरा रकू है, जो आज इंशाअल्लाह ताला भी हम पढ़ेंगे, जो कि 5 आयात पर मुश्तमिल है, उसमें से 2.5 आयात का जो अंदाज है वो शदीद तरीन इंजार की शक्ल है, जैसे किसी को खबरदार किया जा रहा हो, जैसे किसी काफिर मुशरिकीन से मुखातिब हुए जा रहे हो, जैसे मक्की सूरतों का जो अंदाज था, ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि ये मामला जिसको तुम लाइटली ले रहे हो, ये मामला इतना लाइटली नहीं है, वो चाहे अल्लाह की कोई भी हदूद हो। फिल वक्त हम यहाँ तलाक की बात कर रहे हैं तो मैं उसी के ऊपर रहता हूँ। तो ये जो तुम मामला इजी ले रहे हो, लाइटली ले रहे हो, इसको मत लो। यानी उनको माना या ना माना इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि उन कानून की खिलाफ वर्जी का मतलब ये है कि गोया तुमने अल्लाह के गजब को दावत दे दी। ताकीद के मामले में 2 बातें फुकहा ने बयान की हैं। किसी भी चीज पर ताकीद के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है तरगीब के अंदाज में, और दूसरा होता है तरहीब के अंदाज में। तरगीब क्या है? वाज़ेह अल्फाजों के साथ किसी बात की नसीहत की जाए, यानी किसी काम को मुख्तलिफ तरीकों से समझाया जाए ताकि बात किसी तरह दिल में उतर जाए, यानी कि नरमी के लिहाज से, नरम तरीके से, प्यार से कुछ ऐसा मामला पेश किया जाए मुख्तलिफ हरबों से कि बात किसी तरह उसके दिल में उतर जाए। जबकि तरहीब का जो अंदाज होता है वो धमकाना होता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाए, यानी कि किसी बात को भी समझाने के 2 पहलू, एक मोहब्बत के जरिए और एक गुस्से के जरिए, इंजार के जरिए, जगा देने के जरिए कि ये काम इजी नहीं है। तो अगर हम इसी बात को सूरत तलाक में देखें तो तरगीब का जो अंदाज था वो हम पिछले रकू में पढ़ चुके हैं, बल्कि कुछ जगह पर हमने तरहीब का भी अंदाज पाया जहां पर अल्लाह की हदूद का जिक्र हुआ, जैसे कि अभी मैंने आपके आगे पढ़ा। लेकिन सूरत तलाक का जो दूसरा रकू है इसमें ज्यादातर जोर तरहीब के अंदाज में है। तो ये बात इस मुनासबत से भी वाज़ेह हो गई कि सूरत तलाक के अंदर जो 2 रकू हैं, एक के अंदर तरगीब ज्यादा है, तरहीब कम है, और दूसरे में तरहीब ज्यादा है, तरगीब कम है। इन 5 आयात से मुतल्लिक ये भी बात आप जान लीजिए कि इनमें बज़ाहिर तलाक, इद्दत का कोई जिक्र नहीं, जबकि हम ये पिछले रकू में पढ़ चुके हैं, और ना ही उसी से मुतल्लिक कोई कवानीन का जिक्र भी है। लेकिन सारा का सारा जोर इसी बात पर है, अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करो और उसकी पाबंदी करो। यानी कि ये भी एक निस्बत है कि इस रकू के अंदर अल्लाह ताला ने इंजार की शक्ल में तरहीब का अंदाज रखा है, पाबंदी के ऊपर जोर डाला है कि मेरे असूल, मेरी बनाई हुई हदूद, इनको हल्का मत समझो। अगर समझते हो तो इसका मतलब तुम में ईमान नहीं। और पिछले रकू के अंदर तरगीब का अंदाज था, हर लिहाज से, हर अंदाज से इंसान को बताया गया कि ये हिकमत है, इसमें ये शऊर मिलेगा, इसमें ये फायदा मिलेगा,
ये मेरे नेक बंदे हैं, ईमान वाले, उनमें ये चीजें होती हैं, तो दोनों चीजें वाज़ेह हो जाएंगी और उनको हल्का ना समझा जाए, इस रकू में ये बात वाज़ेह थी। तो अब हम इन 2.5 आयात का अंदाज पढ़ते हैं। वकअय्यिम मिन क़रयतिन अतत अम्रि रब्बिहा व रसूलिही, और कितनी ही बस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार और उसके रसूल के हुक्म से सरकशी की। अतत का मादा आता है भाग निकलना, जैसे कोई जानवर रस्सी तुड़ाकर भाग जाए। इसका मफहूम इस लिहाज से ये देखते हैं कि जो इंसान अपने रब के कानून की रस्सी तुड़ाकर भागता है, अपने रब के अहकामात की रस्सी तुड़ाकर भागता है और अपने रसूल उनकी रूह गर्दानी करता है, फहासबनाहा हिसाबन शदीदा, तो हम उनका सख्त हिसाब लेंगे और उन्हें सख्त सजा देंगे। सूरतुल फजर में गालबन ये बयान हुआ है या सूरतुल लहब में कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के पास जब नेक लोग अपनी नेकियां लेकर आएंगे तो सबसे पहले उन नेकियों का मुहासबा जो किया जाएगा, यानी कि हिसाब जो लिया जाएगा, वो इस तरह का होगा कि जिनको उन्होंने दुनिया में कोई गलत अल्फाज बोले हों, कोई बात ऐसी कह दी हो जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया हो, तो आधा हिसाब तो वो लोग उसकी नेकियों में से ले जाएंगे। कुछ वो लोग होंगे जिसके साथ उन्होंने ज्यादतियां की होंगी बड़े पैमाने पर, उसमें से उसकी कुछ नेकियां, कुछ नमाजें उसकी वो ले जाएंगे, और फिर जो बाकी नेकियां बचेंगी, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मैं मफहूम बयान कर रहा हूं उस बात का, कि उसमें से अल्लाह ताला उनमें से उन नेकियों में से नियतों को निकाल लिया जाएगा, तो बिल आखिर उसमें से यूं रह जाएगा जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रात इंसान एक वक्त ऐसा आएगा कि सुबह से लेकर शाम तक जब सोने लगेगा तो कोहे तूर जितनी नेकियां इकट्ठी की होंगी, मगर जब रात को सोने लगेगा तो उनका वजन राख के बराबर भी। तो ये है वो रियलिटी। और मगर एक वो कौम भी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कि वो भी लोग होंगे जिनसे अल्लाह ताला दरगुजर फरमा, ठीक है इन्होंने कोई गलतियां की हैं, इनको पसे पुष्ट करो, बस ठीक है, इनको जाने। तो अल्लाह ताला से हिसाब वो हम नहीं दे सकते, एक एक सांस का हिसाब, एक एक अल्फाज का हिसाब। यहां पर उसी बात को एक लफ्ज में इकट्ठा कर दिया गया है, फहासबनाहा हिसाबन शदीदा, तो हम उनके साथ सख्त हिसाब लिया जाएगा, एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा और उनके लिए सख्त सजा होगी। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला का हिसाब होगा तो फिर उसमें से कौन इंसान बच सकता है, कहां से वो बताएगा कि मैंने ये काम इस तरीके से किया या मुझे इसमें से बचाव हो जाए। तो फहासबनाहा हिसाबन शदीदा, तो हम उनका सख्त हिसाब लिया जाएगा और सजा दी जाएगी। वाज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, और ऐसी बड़ी सजा उनको दी जाएगी जो उन्होंने कभी देखी ना हो। अज़ाबन नुकरा, इस लफ्ज नुकरा को भी समझ लें, यानी कि ऐसी शय जो अजनबी हो, जो शय पहचान में ना आए, यानी ऐसी शय जिसका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता, जिस बात का अंदाजा भी इंसान कायम नहीं कर सकता, वैसी सजा अल्लाह ताला उसको देंगे। अल्लाह ताला हम सबको सजा से बचने की अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार तौफीक अता फरमाए। तो एक वो होती है गिरफ्त जो आम किस्म की गिरफ्त होती है, लेकिन एक वो अजाब है, वो गिरफ्त है जिसका अंदाजा तक भी हम नहीं कर सकते। इसी बात को सूरत सजदा में वाज़िया किया गया कि वो गिरफ्त से मुराद कौन सी गिरफ्त। एक होता है बड़ा अजाब जिसमें किसी कौम की जड़ काट दी जाए, और फिर वो ऐसा अजाब होता है जैसे वो वहां पर कभी थे ही नहीं, इस हालत में आ जाते हैं, जैसे कि सूरत इनाम में फरमाया फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू, जिन लोगों ने जुल्म की रविश इख्तियार की तो उनकी अल्लाह ताला ने जड़ काट दी, उस अजाब से उनको ऐसे कर दिया जैसे वो वहां थे ही नहीं। और अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है कि इस बड़े अजाब से पहले अल्लाह ताला हमेशा छोटे अजाब देते हैं। इस बात की दलील सूरत सजदा में वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना व दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, और इस बड़े अजाब से पहले भी हमने इन्हें कम दर्जे के अजाब
के मजे चिखाए, शायद ये लोग बाज आ जाते। तो ये अजाब उन कौमों की तरफ आता है जिनकी तरफ रसूलों को भेजा जाता है, ताकि उन लोगों में से जो लोग जाग सकते हैं वो इन छोटे अजाब की वजह से जाग जाएं, और फिर जब लोग उसके बावजूद होश में नहीं आते तो आखिरकार वो अजाब आता है, और फिर वो अजाब कोई मामूली किस्म का अजाब नहीं होता, वो ऐसा अजाब होता है जिससे उनकी जड़ काट जाती है, या उस जिसको हम कह सकते हैं अजाब अकबर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे वो वहां थे ही नहीं, इस किस्म के अजाब। वाज़बना अज़ाबन नुकरा, और ऐसे बड़े अजाब उन्हें दिए जाते हैं जैसे कि उन्होंने कभी पहले वो देखे ना हो। फज़ाक़त व बाला अमरिहा व कानत आक़िबतु अमरिहा खुसरा, चुनाचे इन्होंने अपने अमाल का वबाल चखा और उनके अमाल के आखिरी अंजाम नुकसान ही नुकसान। यहाँ एक और बात भी समझ लें इसी से मुतल्लिक, वैसे तो इस सूरत का जोड़ा है सूरत तहरीम, लेकिन ये तमाम सूरतें जैसे कि मैंने पिछली दफा भी कहा एक ग्रुप की हैं, तो इनमें भी एक खास मुनासबत आपस में जुड़ती है। तो उसी मुनासबत से अगर हम यहाँ पर देखें तो सूरत तगाबुन में इस आयत को यूं वाज़िया किया, इस बात को फज़ाक़ु व बाला अमरिहा, और यहाँ पर कहा गया फज़ाक़त व बाला अमरिहा। वहां पर कौमों का जिक्र है जो उन बस्तियों में बसते थे, आबाद थे, और यहाँ पर उन बस्तियों का जिक्र है, तो बात एक ही है। तो इस लिहाज से भी ये तमाम सूरतें आपस में इंटरलॉक होती हैं। आदल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, तो एक अजाब जहन्नम का है जो उनका मुंतजिर है, जो बैठा हुआ है। दूसरा अजाब जो दुनियावी लिहाज से भी, जिसमें उनका खात्मा होता है, और ये वो अजाब होता है दुनियावी लिहाज से। बात जान लें कि ये कोई बड़ा अजाब नहीं होता, क्योंकि दुनिया की जो मौत होती है वो चंद लम्हों की होती है। यानी कि अगर किसी ने कोई जुल्म किया, को कत्ल किया, तो उसको आपने फांसी की सजा भी दे दी, तो वो फांसी चंद सेकंडों की होगी जिसमें वो लटकेगा और गर्दन खत्म। अगर किसी शख्स पानी में भी डूब जाता है तो वो चंद लम्हों की ही तकलीफ है, ये वो अजाब नहीं है। इस बात की यहाँ पर दलील की गई, तो जो अजाब अल्लाह ताला के यहाँ उन लोगों का जिन्होंने अल्लाह के अहकामातों को तोड़ा, वो अजाब वो दुनियावी अजाब नहीं है, जिसकी मैं मिसाल भी आपको दे चुका हूं कि उनकी जड़ कट गई। तो वो कोई अजाब कोई बड़ा अजाब नहीं है, वो तो कोई आसमानी आफात आई और गिरी और वो मर गए। जैसे कि लूत की कौम हो गई, समूद की कौम हो गई, वो बस्तियां जिनको उठाया और लपट के बंद कर दिया, तो वो तो एक झटके में मर गए। ये वो अजाब नहीं है यहां पर उस बात की वजह। वो अजाब तो एक हल्का और झटके वाला अजाब है। तो मौत इस दुनिया में अजाब नहीं है, जबकि दुनियावी इतबार से हमें वो अजाब नजर आता है। तो बहुत बड़ा अजाब इनको पर आ गया, वो तूफान आ गया, या सैलाब, आजकल बारिश हो रही है तो वो सैलाब आ गया, या बिजली गिर गई, या जलजले से वो घर की छत के नीचे आ मर गए, वो तो चंद लम्हों का एक दर्द है, वो खत्म हो गया। यहाँ पर बात की जा रही है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में मेरे अहकामात को लाइटली लिया, उनके लिए मुंतजिर है वो अजाब जो इन्होंने कभी सोचा नहीं, जिसकी दर्दनाकी बढ़ती चली जाए, शदीद से शदीद तर होता चला जाएगा। लेकिन असल अजाब तो वो है जिसकी दर्दनाकी कभी खत्म ना हो। उसी बात की वजाहत सूरह आला में की, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, वो वहां पर ऐसे होंगे, यानी कि ऐसी मौत में होंगे जो कभी इनको मौत आएगी ही नहीं। फिर वो आग में ना तो मरेंगे ना वो जिएंगे। तो यहां पर भी उसी बात की, उसी अजाब का, बात की नहीं, उसी अजाब का जिक्र किया जा रहा है। आदल्लाहुम अजाबन शदीदा, और आखिरत में हम इनके लिए एक सख्त अजाब तैयार करेंगे। यहां पर मैंने इस अजाब से मुतल्लिक एक दफा बात पहले भी वाज़िया की थी, यहां पर मैं दोहरा देता हूं। एक होता है अजाब, एक होता है दर्दनाक अजाब, शदीद अजाब। जो सही लफ्ज है वो है शदीद। शदीद अजाब से मुराद, ये बात मैंने इस तरह वजाहत की कि जैसे आप किसी शख्स को मारते हैं तो एक जगह पर मारते हैं, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, तो वो जगह सुन्न हो जाती है, तो वो उस दर्द का आदी हो जाता है। अल्लाह ताला यहाँ पर जिस अजाब का जिक्र कर रहे हैं वो है शदीद अजाब, वो अजाब जो अपनी शिद्दत बढ़ाता ही चला जाए। मौत की तरफ तो इशारा कर दिया कि सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वो जिएंगे ना वो मरेंगे, यानी कि मौत तो होगी नहीं।
तो वो दर्द अजाब बढ़ता ही चला जाए। तो उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो आप दुनिया में अल्लाह ताला की बनाई हुई उन हदूदों को नहीं तोड़ें। तो वो अजाब उनका मुंतजिर होगा, इंतजार में होगा। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, लिहाजा ए अकल वालो, फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, अल्लाह से डरते रहो। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर तरगीब का अंदाज है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस सूरत के अंदर आराम से बात को भी समझाया गया, एक तरफ इंजार की शक्ल में भी समझाया। तो ये बात हमने पहले भी पढ़ी, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किलों से उसको निकालने के लिए रास्ते पैदा कर देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा, आसानियां अता फरमाएगा जहां से उसने कभी गुमान न किया, मगर यहां पर इंतजार की शक्ल। तो दोनों का नतीजा एक ही है। तो फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, तो यहाँ पर जो 2.5 आयात हमारी अब मुकम्मल हुई हैं, जिसका इंजार खिताब वैसा है जैसे मुशरिकीन से किया जा रहा हो, कुफार से किया जा रहा हो, वही अंदाज यहाँ पर इख्तियार किया गया। इसी से मुतालिक यहाँ पर एक और नोट बात कर लें कि इस ग्रुप की सूरतें जो हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ेंगे, जो कि सूरत शुरू होती है सूरतुल हदीद से सूरतुल तहरीम तक, यहाँ पर खिताब किसी काफिरों से नहीं हो रहा कि उनके लिए सख्त अजाब है, ये अजाब है, उनके लिए ये हदूदें हैं। यहाँ पर मुसलसल बात मुसलमानों से हो रही है, क्योंकि आईली जिंदगी किन की बयान हो रही है? मुसलमानों की। तो यहाँ पर बयान मुसलमानों से हो रहा है, उम्मत मुसलमान से खिताब हो रहा है। तो उनमें वो लोग भी हैं जो सच्चे हैं, और उनमें वो लोग भी हैं जिनके दिलों पर रोग लग गया है, और वो भी हैं जिनका कौल और फेल दोनों में तज़ाद है, और वो भी हैं जो जबान से इश्क रसूल कहते हैं मगर अमल में कोसों दूर। तो असल में यहाँ पर वही लोग मुखातिब। तो हम ये ना समझे कि यहाँ पर काफिरों से जिक्र हो रहा है, तो काफिर का मतलब मैंने पिछली दफा भी बयान किया था, हमारे मुताबिक गैर मुस्लिम नहीं। काफिर का मतलब जो अल्लाह के हकूकों को ना माने, अल्लाह की हदूदों को ना माने, या उनको लाइटली ले और उनको तोड़ता फिरे। जैसे कि मैंने पिछली दफा भी इसका रेफरेंस दिया था, वो मजा चखने वाले या मजा चखने वालियां जो अल्लाह के असूलों को, अल्लाह के रूल्स को तोड़ते फिरते रहे। तो फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब अल्लज़ीना आमनू, तो लिहाजा ए अकल वालो अल्लाह से डरते रहो जो ईमान लेकर आए, जो ईमान का दावा करते हैं, जो ईमान का इकरार करते हैं, जिन्होंने ईमान को कबूल किया, तो उनको यहाँ मुखातिब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ए लोगो, तुम तो होश करो और उस पर ईमान लाओ जैसे ईमान लाने का हक है, जिसका नतीजा है तकवा और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी। यहाँ पर किस तरह शद्दोमद के साथ इस बात को वाज़ह किया जा रहा है कि अकल वालों, पहली तो ये सिर्फ, दूसरा जो ईमान लेकर आए, ये उनकी दूसरी से, ईमान वाला और अकल वाला, यहाँ पर उन दोनों को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि अल्लाह के अहकामात पर अमल करो। कद अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रा, अल्लाह ने तुम्हारे पास एक सरपा नसीहत भेजी है, अल्लाह ने तुम पर करम फरमाया है, तुम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई है और फिर अपना कानून अता किया। और ये भी अल्लाह ताला की हम पर एक बहुत बड़ी रहमत है कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया, हमारे लिए इतनी बड़ी आसानी पैदा की कि बाय डिफॉल्ट जब हम पैदा हुए तो हमारे ऊपर ये रहमत नाजिल फरमा दी, ये करम नाजिल फरमा दिया। और उसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बात सूरत तलाक यानी कि तलाक से रिलेटेड है, इंसान की आइली जिंदगी से रिलेटेड है, तो फिर वो कानून भी अता किए जिसकी वजाहत होती है दलील के साथ। आज के दौर में जो हमारी आइली जिंदगी है, जो हमारे लिए, हमारे लिहाज से हमें नेमत नजर नहीं, मगर हकीकत में वो बहुत बड़ी नेमत है जिसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा, और फिर भी तुम उसको नाकदरी करते हो, उसकी हिकमत को पशे पुष्ट डालते हो और उसकी नाफरमानी करते हो। क्योंकि मैं ये बात देखता हूं कि आज के दौर में आइली जिंदगी को मनसूख कर दिया इस बिहाफ के ऊपर कि मर्द या औरत आजाद है, और आजादी के मतलब में उन्होंने उस आइली जिंदगी के अंदर बेहयाई को अपनाया, और उस बेहयाई की बुनियाद के ऊपर आइली जिंदगी खड़ी कर।
ऐसा मुमकिन है। आप ये सोचे कि उसका साइड इफेक्ट वो कहीं ना कहीं गिरेगा। अगर आपने बीज अच्छा डाला है, खाद अच्छी नहीं डाली, उस खाद की खराबी उस दरख्त के किसी ना किसी फल में तो जरूर आएगी। तो आप ये बात मैंने पिछली दफा भी बयान की थी, दोबारा दोहरा देता हूं। आइली जिंदगी के जो कानून अल्लाह ताला ने हमारे आगे बयान किए, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात के जरिए उसको अमल के जरिए आगे रखे, और फिर खासकर आपके खुलफाए राशिदीन ने आगे रखे। हमने आज उस आइली जिंदगी को मंसूख कर, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, अल्लाह ने तुम्हारे पास एक सरपा नसीहत भेजी है। रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात, यानी वो रसूल जो तुम्हारे सामने रोशनी देने वाला अल्लाह की आयत पढ़ कर सुना रहा है। ये आयत बड़ी अहम है। ये जैसे कि पिछली दफा भी मैंने आपको बयान की थी कि तलाक और इद्दत के माबैन एक कानून आया जो उनको बैलेंस कर रहा है, जो उनकी तकवा को बैलेंस कर रहा है। इसी तरह यहां पर ये बात बैलेंस कर रही है उस इंजार और आखिरी आयत के बीच। रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात, यानी वो रसूल जो तुम्हारे सामने वो रोशनी देने वाली आयत पढ़ कर सुना रहा है, जो हर शय को वाज़ेह कर देने वाली है, हर बात को खोल खोल कर बयान कर देने वाली। इस आयत में बहुत सी चीजें हैं जो समझने वाली हैं, मगर उसमें से चंद आम बातें मैं आपके आगे बयान कर दूं। यहां लफ्ज आया जिक्रन रसूला। वैसे तो आप देख रहे होंगे कुरान मजीद में ये दोनों लफ्ज आपस में जुड़े हैं, जिक्र रसूला। यहां जो लफ्ज जिक्र आया है वो असल में कवर कर रहा है हुजूर की शख्सियत को। वैसे तो जिक्र का लफ्ज जब भी कुरान में आम तौर पर आता है वहां कहा जाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्नहु लहाफ़िज़ून। हकीकत ये है कि ये जिक्र यानी कि कुरान हमने तुम्हारे ऊपर उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अगर हम लफ्ज जिक्र को पिछले अल्फाज के साथ जोड़ेंगे, कद अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रा, इस लफ्ज के हिसाब से जोड़ेंगे तो इसका जो मायने या इसका मुराद जो बनेगा वो है कुरान। लेकिन जब हम इस आयत को, जैसे कि कुरान मजीद में है कि ये आयत जुड़ रही है अगली आयत के साथ, वैसे बीच में वक्फा है, अगर आप वक्फा करना चाहें तो उसके मायने उस लिहाज से, और अगर आप वक्फा नहीं करेंगे तो तब ये बनेगा कद अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्र रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात। जैसे कि ये आयत आपस में जुड़ी हुई है कुरान मजीद के अंदर, वो जिक्र जो रसूल पढ़ कर सुना रहे हैं। यहां पर जिक्र से मुतल्लिक एक और बात भी जान लीजिए कि रसूल और किताब दोनों मिलकर वहदत है, ये अलहदा शय नहीं। जैसे कि हम कहते हैं ऑर्गेनिक होल, यानी कि वो चीज जिसको अलहदा नहीं किया जा सकता, यानी कि एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। तो रसूल की जात और कलाम जो उस पर नाजिल हुआ, ये दोनों मिलकर वहदत, अलहदा नहीं। इस बात की मिसाल हमें सूरतुल बय्यिना में भी मिलती है, क्योंकि अक्सर लोगों का ये भी कहना होता है कि ये अलहदा अलहदा है, रसूल और कलाम। मैं यहां पर उसको भी वाज़ेह कर रहा हूं, और जिक्र के लफ्ज को मैं जैसे कि आपके पहले वाज़ेह कर चुका कि जिक्र को अगर आप पिछले लफ्ज के साथ जोड़ेंगे तो इससे मुराद है कुरान, मगर जब इस आयत को जोड़ेंगे मिला के, जैसे कि कुरान मजीद में मिलाया गया है, तो इसका मतलब ये है जिक्र यानी कि कुरान और रसूल दोनों का। इस बात की वज़ाहत सूरतुल बय्यिना में यूं होती है, लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुनफकिना हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। मुशरिकीन और अहले किताब में से जो लोग काफिर थे वो उस वक्त तक बाज आने वाले नहीं थे जब तक उनके पास बय्यिना ना हो। और वो बय्यिना क्या है? रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहफ़म मुतहहरतन फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, यानी अल्लाह का रसूल और उसकी किताब, इसको कहते हैं बय्यिना, जो सीधे रास्ते वाली है, जो उनको सीधा रखने वाली है, जो सच्ची तहरीर में लिखी है। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं एक किताब और उसका मुअल्लिम, ये भी लफ्ज बोला गया है। जैसे कि हुजूर ने कहा कि मुझे इस कायनात में, इस दुनिया में एक मुअल्लिम की हैसियत से भी भेजा।
तो एक रसूल और एक किताब दोनों मिलकर वहदत बनते हैं। तो अब आप उस वहदत को जिक्र भी कह सकते हैं एक वर्ड के अंदर, अब आप उस वहदत को बय्यिना भी कह सकते हैं। तो यहां पर उस जिक्र को यानी कि उस वहदत को जिक्र के लफ्ज में लाया गया। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रर रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात। और इसी बात की तायीद हजरत आयशा के एक कौल से भी हमें मिल जाती है। वो क्या? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल, जब आपसे पूछा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाए तो आपने फरमाया, पलट के उनसे वही सवाल किया। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर इस तरह की फरमाइश के ऊपर अगर हजरत आयशा कोई वाकया बयान कर देती तो वो लोग भी बड़ी दिलचस्पी से सुनते, मगर ये हिकमत है, एक अंदाज बयान है जो हमें इख्तियार करना चाहिए कि हजरत आयशा का ये एक उनका कॉल का अंदाज या स्टाइल ऐसा होता था कि वो पलट के ऐसा सवाल होता था उल्टा, जिससे इंसान खुद अपने गिरेबान में जानता है। जब उनसे कुछ सहाबा ने आके पूछा हजूर की सीरत के बारे में बताएं, उनका घर के अंदर इबादत का क्या मामूल होता था वो थोड़ा हमें बताएं, उनका रहन सहन कैसा होता था, यानी कि उनका लाइफ स्टाइल हमें थोड़ा बताएं। तो उन्होंने कहा क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? ये उल्टा उनसे पूछते, जबकि वो कुरान पढ़ते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम पढ़ते हैं। तो फिर उल्टा फिर दोबारा सवाल पूछा गया उन्हीं से, क्या तुमने सूरतुल मुज़म्मिल नहीं पढ़ी? क्या तुमने सूरतुल मुदस्सिर नहीं पढ़ी? क्या पूरा कुरान नहीं तुमने पढ़ा? पूरा कुरान ही हजूर की सी। तो ये एक हिकमत का अंदाज है बात करने, और अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने उसको सही रुख पे डाला। वैसे तो कोई वाकया भी बयान हो सकता था। तो हजूर और कुरान को हम बय्यिना भी कह सकते हैं, जिक्र भी कह सकते हैं, हम इसको नूर भी कह सकते हैं, क्योंकि हजूर की सूरत, हजूर की सीरत नूर हदायत, और नूर का क्या काम है? रोशनी का क्या काम है? रास्ता दिखाना। और जिक्र का क्या मतलब है? याद दिलाने। कोई चीज थी तुम भूल गए थे, तुम्हारे अंदर मौजूद थी, उसके ऊपर जंग आ गया, तो दिलों पर जंग पड़ जाता है। तो उस जंग को धोने के लिए अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की, जो मैंने पिछली दफा भी रेफरेंस में की, कि जब आपको ये महसूस हो कि आपका दिल नहीं लग रहा, तो कम से कम उसके लिए कोशिश करो ऐसी महफिलों में जाओ जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, उसके अहकामात बयान हो। जिक्र से मुराद अहकामात बयान हो। उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके दिलों से जंग उतर जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को कि जन्नत के फलों में से कुछ खा लिया करो, कुछ पी लिया करो। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, खाने और पीने से क्या मुराद? यानी कि ऐसी महफिलें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां पर अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात यानी कि कुरान मजीद की मामला या कोई आयात आपस में डिस्कस हो रही हो, तो ऐसी महफिलों में चले जाया करो, तो उनमें से कुछ खा लिया करो, कुछ पी लिया करो। यानी कि वो चीजें जब तुम पे ऊपर भी गिरेंगी, तुम उस महफिलों में जाओगे। क्योंकि आजकल इंसान की सबसे बड़ी खराबी की वजह एक ये रह गई है कि उसका मोस्टली टाइम ऐसी महफिलों में गुजर रहा है, ऐसी गैदरिंग में गुजर रहा है, और अगर महफिलें नहीं है, और खासकर औरतों की बात करूं, तो घरों में उन ड्रामों में गुजर रहा है जो कि शरई लिहाज से गलत हैं, हराम हैं, और जो अल्लाह ताला के अहकामात से, हदूद से आगे क्रॉस है। अब उन महफिलों से आपको कोई दीन की इल्म तो मिल नहीं रहा, तो उस महफिलों से आपके लिए खराबी है। इसका रेफरेंस यूं भी है कि जैसे कोई शख्स सिगरेट पी रहा हो, तो उसको कैंसर नहीं हो रहा, वहां बैठा हुआ वो शख्स जो धुएं को फील कर रहा है, उसको इनहेल कर रहा है, कैंसर उसको हो रहा है। तो नूर जो रास्ता दिखाता है, और जिक्र जो याद दहानी कराता है, और वो याद दहानी जब तुम्हारे दिलों में घुसेगी, तुम उन महफिलों में बैठोगे, उन बयानात तबलीगों में जाओगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जंग तुम्हारे दिल से उतर जाएगा। तो जिक्र है याद दहानी, जो चीज भूल गई थी, मैं अल्लाह के वहां से आया था, मैंने अहद किया हुआ था, मैं भूल गया हूं, तो इस जिक्र से मुझे अचानक याद आया, हाँ अल्लाह तो है, मैं बस कुछ दिनों पहले भूल गया हूं, हफ्तों से भूला हूं, महीनों से भूल गया। तो यहां पर उस बात का जिक्र हुआ। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा ज़िक्रर रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात। अब इस आयत में जो दूसरा लफ्ज है मुबय्यिनात, उसको भी समझे। अभी हमने बय्यिना को समझा, अब हम मुबय्यिनात को भी समझे। अक्सर जगह पर बय्यिनात आता है, जैसे कि सूरह हदीद में आया, वल्लज़ी युनज़्जिलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुखरिजा
लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। और यहाँ पर क्या लफ्ज है, रसूलन यतलु अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात, वहां पर आया था बय्यिनात, आयातिल्लाहि बय्यिनात। इसको एक फर्क को समझिए। बय्यिना वो शय होती है जो खुद रोशन हो, जो खुद वाज़िया हो, नजर आ रही है, जो आप खुद चमक रही है। और दूसरा अल्फाज है मुबय्यिना, जो चीज किसी के ऊपर पड़े तो उसको रोशन करे, जैसे दूध का दूध, पानी का पानी अलहदा कर देना, हक और बातिल को वाज़िया कर देना। जिसके लिए लफ्ज आता है फुरकान, जैसे कि सूरह फुरकान के अंदर आया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीर। बड़ी शान है उस जात की जिसने अपने बंदे पर हक और बातिल का फैसला कर देने वाली ये किताब नाज़िल, यानी जो हक और बातिल में इम्तियाज पैदा कर देने वाली शय, सही और गलत में तमीज की सलाहियत पैदा कर देने वाली, ये है वो किताब। अब इसका मफहूम क्या बनेगा, ये लफ्ज आता है आयात के साथ, तो आयात बय्यिना उन आयात को कहा जाता है जिसके जरिए इंसान के अंदर का ईमान वो शऊर पैदा करे, उसको शऊर उजागर उसमें आ जाए, यानी कि वो खुद रोशन हो जाता है। इसको बोलते हैं आयात बय्यिना, जो रोशन आयात है। और आयात मुबय्यिना जो सही और गलत में तमीज पैदा करने वाली आयात, फर्क डाल देने वाली आयात। अगर आपने वो रोशनी किसी जगह पे डाली और वो चीज रोशन, तो यहां पर वो लफ्ज आया रसूलन यतलु अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनाति लियुखरिजा, यानी वो रसूल जो तुम्हारे सामने रोशनी वाली आयात अल्लाह की पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं, लियुखरिजा, ताकि जो लोग, कौन से लोग, इस आयात को वाज़िया करती है सूरह हदीद की आयत। मैंने आपको ये बार बार इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि ये ग्रुप है जो सूरह हदीद से लेकर सूरह तहरीर तक इकट्ठा ग्रुप है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं सूरह तलाक जो कि जोरा है सूरह तहरीम का, अब उसके अंदर से कई आयतें हैं जो वो आयतें रोशनी करती हैं। एक आयत है जो खुद रोशन है, आयत बय्यिना। एक आयत है जो वो दूसरी आयत को रोशन कर रही है, वो है आयत मुबय्यिना। ये है आयत मुबय्यिना। वहां पर क्या कहा गया था, हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिम बय्यिनाति लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। और यहां पर लफ्ज़ कुम को वाज़िया किया, यानी कौन लोग, कौन से लोग, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। ये वो आयतें हैं जो रोशनी पैदा कर देती हैं किनके दिलों में, सिर्फ उनके दिलों में जो ईमान लाए और नेक अमल किए। मैं फिर बता दूं, खाली ईमान लाए नहीं, ईमान लाए और नेक अमल किए। यहां पर उस बात की वजाहत की है, अगर वो लोग हाथ पांव तोड़ कर अगर बैठ गए, अगर वो अमल की नीयत नहीं रखते, यानी कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि ईमान अलहदा है अमल अलहदा है, करेंगे या नहीं करेंगे ये हमारी मर्जी है, ये माशरा हमें कहता है तो करेंगे तो ठीक है, नहीं भाई माशरे ने, जैसे इसकी एक मिसाल, अल्लाह ताला के हुक्म, अल्लाह ताला ने आइली जिंदगी के अंदर जहां से शुरुआत होती है वो निकाह फरमा दिया, ये उसके रूल्स नहीं अपनाए क्योंकि दुनिया के अंदर ये खाते खुले हैं, ये करना है, ये करना है, ये हमारे असूल हैं, ये हमारे खानदानी रवायात हैं। अब उनके खाते नहीं भरेंगे काम नहीं चलेगा। ईमान अलहदा है अमल अलहदा। यहां पर उसकी वजाहत कर दिया कि जो लोग ये सोचते हैं कि ईमान तो हम ले आए, अब हमारे हाथ पांव टूट गए हैं, अब हम अमल नहीं कर रहे, अगर अमल की नीयत भी नहीं रखते, इरादा भी नहीं कर रहे और ईमान और इन दोनों चीजों को अलहदा अलहदा समझते हैं, वैसे तो दुनियावी इतबार से, पहले ये मैं बात आपके आगे रख दूं कि ईमान और अमल दो अलहदा चीजें हैं। ये दुनियावी इतबार से बात, दुनियावी दलील को आगे रखेंगे, उसके थ्रू उसको एक्सरे करेंगे तो आपको ईमान और अमल अलहदा नजर आएंगे। क्योंकि दुनिया में जिस किसी को मुसलमान समझा जाता है वो सिर्फ कलमे के बिहाफ के ऊपर समझा, भाई कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान हो, कलमा नहीं पढ़ा वो मुसलमान हो। अब एक मिसाल है कि हम नहीं डिफाइन कर सकते दो शख्स को आगे खड़ा करके कि इनमें से ईसाई कौन है या मुसलमान कौन,
क्योंकि मुसलमानों के तो तख्ती तो लगी नहीं हुई कि मैं मुसलमान हूं, तो फिर सिर्फ इस बिहाफ पे क्योंकि उसने कलमा, बस दैट्स इट, और कोई बात। इस बिहाफ के ऊपर हम कितने अमल अपने खराब कर यहां, लेकिन अल्लाह के मामले में, अल्लाह के सिलसिले में जब हमला के आगे वो हिसाब जो अभी मैंने आपको बात की, हिसाबन शदीदा, जब हिसाब होगा वहां पर ईमान और अमल दोनों इकट्ठे। अल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिह, सिर्फ आमनु होता तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती, फिर अमल की जरूरत ही नहीं थी। इसी बात को बड़ी वजाहत के साथ इमाम बुखारी ने वाज़िया किया कि वो ईमान जो अंदर है वो कभी घटता है कभी बढ़ता है। अगर अंदर वाला ईमान बढ़ेगा तो बाहर इंसान की नेकियां भी बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि उसके अमल बढ़ेंगे, अमल बढ़ेंगे तो नेकियां बढ़ेंगी। अगर अंदर का ईमान घटेगा तो अमल भी घटेगा, अमल घटेगा तो दूसरी तरफ उसकी नेकियां भी घटेंगी और बुराइयां बढ़ेंगी। ये है हकीकत, ये दलील है इस बात की कि तेरा अमल कम है, इसका मतलब तेरा ईमान कम है। अगर दुनियावी लिहाज से देखें तो वो कहेंगे कि आपका ईमान तो पूरा है क्योंकि आपने कलमा पढ़ा, ऐसा। तो ये बात यहां पर वाज़िह हो गई, रसूल यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात लियुखरिजल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, यानी वो रसूल जो तुम्हारे सामने रोशनी देने वाली आयात पढ़ कर सुना रहे हैं, कि कुरान मजीद की वो वाली आयात जो वाज़िह हो रही है, जो सही और गलत में फर्क कर रही है। ये मुबय्यिनात, बय्यिना नहीं, मुबय्यिनात, लियुखरिजल्लज़ीना आमनु, ताकि जो लोग ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए, उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाए। ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, यहां पर मुशरिकीन से मुखातिब नहीं हो रहे अल्लाह ताला, मुसलमानों से ही मुखातिब हो रहे हैं। और वो कौन से मुसलमान? आमनु वामिलुस्सालिहात, एक दर्जा और ऊपर चला गया, आमनु वामिलुस्सालिहात, उनको मुखातिब करके कहा जा रहा है कि तुमको भी अंधेरों से निकाल लिया जाए, यानी कि वो लोग भी अंधेरों में आ सकते हैं, जी वो आ सकते हैं। इसी वजह से यहां पर वाज़िह किया जा रहा है, इसलिए पहले ही मैंने दलील दे दी। और यहां पर अंधेरे से मुराद कौन से अंधेरे? गुनाह के अंधेरे नहीं। क्यों? क्योंकि वो ईमान ले आए और अमल भी कर लिया, अब से आम लिहाज से वो ऊंचे हो गए। अब उनके अंधेरे कौन से होंगे? उसके तो अंधेरे थे गुनाह के अंधेरे, खौफ के अंधेरे, बुराइयों के अंधेरे। तो इनके कौन से अंधेरे होंगे? इनके अंधेरे होंगे मेरे भाइयों जो इस सूरत के एंड पे आ रही है, वसवसे के। एक तो वो इंसान है जो अल्लाह को नहीं मानता, वो तो सीधा सीधा ही खत्म हो गया। एक वो है जो अल्लाह को मानता है मगर उसने कुछ दावे रख लिए हैं कि मुझे तो अल्लाह ताला के हाथ से सिफारिशी है, मुझे छुड़ा लेंगे। जैसे पुराने जमाने में या उस जमाने में कुफार के जमाने में लोग कहते थे फरिश्तों को कि अल्लाह की बेटियां ये तो हमें छुड़ा लेंगे, ये देवी देवता, वो अल्लाह एक है मगर ये देवी देवता हमारे लिए ऐसा सिफारिश करेंगे। तो हम यहाँ पर किसी एक को अगर खुश करेंगे तो वो हमारे लिए वहां पर सिफारिश करेगा, हमारा रेफरेंस करेगा। और एक इनसे भी आगे लोग होते थे, वो ये कहते थे कि हमें सिफारिश रखने की जरूरत नहीं। क्यों? हम तो जिनकी उम्मत में से हैं, हम बड़े टॉप कर, हम तो इब्राहिम की औलाद में से हैं। जो आज भी यहूदी इस बात के ऊपर दावा करते हैं कि हम तो इब्राहिम की औलाद में से हैं, हम कमतर नहीं है क्योंकि हमें तो बहुत नेमतों से नवाजा गया, जो कि बात सही है, तो उनको अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा, मगर उन्होंने इस बात को नहीं समझा। इसी तरह एक वो शख्स है जो इस मामले में आता है कि जो अल्लाह की भी मान रहा है। मैं अब उस हिस्से पे आ रहा हूं जो मैंने पहले भी बयान किया था सूरत तकवीर में और सूरत इंशिकाक में। एक वो है जो अल्लाह को मान रहा है मगर साथ एक खुफिया हरकत वो क्या करता है, वो कहता है कि अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है, उसको क्या लेना देना मुझे अजाब दे, मुझे क्यों अजाब देगा, मुझे 70 माओ जितना प्यार करता है, तो ये अजाब हुजूर कोई नहीं देगा, ये सिर्फ डरावा है, एंड पे सब छोड़ दिया, वो तो बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है, वो अजाब जरूर नहीं देगा। तो ये वो लोग हैं। अब इन सब से ऊपर एक टॉप पर आ जाए जो बेहतरीन बंदा है, जो ईमान भी रखता है, अमल भी कर रहा है। अब उसको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्टर्ब करेंगी? वो है वो वसवसे जो इस सूरत के एंड पे आएंगे। यहां पर मैं सिर्फ उसका इशारा कर दूंगा, तो उनको अल्लाह ताला उन अंधेरों से निकाल देगा। कौन से अंधेरे? वो ज़हन के अंधेरे, वो फिक्र के अंधेरे, वो नियतों के अंधेरे,
वो उमंगों के अंधेरे, उनसे उनको निकाल। अभी आगे आगे तो उसकी वजाहत होगी, तब मैं ये बातें आपके आगे खुल जाएंगी, क्योंकि वो ये आयात अब बन जाएंगी मुबय्यिना, अभी बनी है मुबय्यिना, तब वो बन जाएंगी बय्यिना, क्योंकि वो उसको वाज़िह करें। तो यहां पर इस बात को भी समझ लें कि जुल्मात बहुत किस्म की हो सकती हैं, मगर वहदत नूर सिर्फ एक होता है। तो इन तमाम अंधेरों से, यानी कि कई किस्म के वसवसों से निकालने वाला वो नूर, वो अल्लाह का नूर, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, वो नूर हदायत और वो आयात हमें उसमें से निकाल लेंगी। और ये कौन निकालेगा? रसूल यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुखरिजल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। आगे फिर वही तकरार शुरू हो रही है। वमन युमिन बिल्लाहि, जैसे कि मैंने आपको पिछली दफा भी बताया, तलाक और इद्दत में एक सेंटर वाली आयत आई जो दोनों को बैलेंस कर, ये वो आयत थी जो इंजार की शक्ल और अल्लाह ताला के वो रूल्स जिसके बिना के ऊपर ये हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है, ये उसको बैलेंस कर देती। अब आगे फिर वही बात चलती है। वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे। यहां इस बात की तरफ इशारा हो रहा है, तुम ये ना समझो कि दावा ईमान तुम्हारे लिए काफी है, वो तुम्हें कफायत कर जाएगा, तुम्हारे बेड़े पार कर देगा, बल्कि इसकी एक शर्त है कि तुम्हारे अमल से उस नीयत, उस ईमान की शहादत मिलनी चाहिए। यही बात जैसे मैंने पहले कही थी, ईमान और अमल अब उल्टी हो गई है। अमल से नीयत, तुम्हारा ईमान नजर आना चाहिए, तुम्हारे अंदर उसका ज़हूर, उसकी सीरत नजर आनी चाहिए, तुम्हारे किरदार में उसका मामला नजर आना चाहिए। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान को जब आप जज करते हैं, सबसे पहले आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसको देखते हैं कि ये बंदा किस कैलिबर का है, फिर उसी तरह आप उसके बाद उसके अल्फाजों से, उसकी बातचीत से। इसी तरह अल्लाह ताला यहां पर फरमा रहे हैं कि सबसे पहले तुम्हारी सीरत में वो चीज नजर आनी चाहिए, तुम्हें नजर आए तुम्हारे लिबास में उसके सुन्नत रसूल, तुम्हारे चेहरों पे सुन्नत रसूल, तुम्हारी बातों में इखलाक, वो चीज नजर आनी चाहिए। तो तुम्हारे किरदार में, तुम्हारी जिंदगी के मामलात में, तुम्हारे रवैये में। मगर जबकि नजर क्या आ रहा है कि इंसान किन चीजों के पीछे भाग रहा है, रात दिन किन चीजों के पीछे कर रहा है, वो है दौलत। ये मामला जिसके लिए अल्लाह ताला के रसूल ने आपको ताकीद की, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ये मामला तुम्हें नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से आज बहुत से लोगों में यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपनी कलाम को खुद नहीं करते। एक टिकटॉक, एक फेसबुक और इनके ऊपर पैदा होने वाले वो शॉर्ट क्लिप्स, इन्हीं के जरिए उस ईमान का नतीजा निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर उस शर्त को आगे रखा गया कि तुम भाग किन चीजों के पीछे हो। वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह इसको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां जितनी देर वो हमेशा हमेशा रहेगा, वहां वो हमेशा हमेशा रहेगा। यहां पर लफ्ज़ पहले खालिदीन फीहा अबदा का समझ कि वहां वो हमेशा हमेशा रहेगा। इसका क्या मतलब? सूरत तगाबुन में इसकी वजाहत यूं की गई, वहां पर आया अहले जहन्नुम के लिए सिर्फ लफ्ज़ खालिदीन फीहा, वो वहां रहेंगे, बात खत्म हो गई। जबकि अहले जन्नत के लिए आया है खालिदीन फीहा आबादा। आबादा मतलब हमेशा हमेशा। वैसे तो दोज़ख के बारे में लफ्ज़ आबादा भी आया है कुरान में, लेकिन उम्मत के दो बहुत बड़े शख्सियत, इमाम इब्ने तहमिया और इब्ने अरबी, जिसको शेख अरबी भी कहा जाता है, तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम हैं, उनका ये इत्तेफाक है इस बात पर कि जन्नत कभी खत्म नहीं होगी, वो खालिदीन फीहा अबदा होगी, वो हमेशा हमेशा रहेगी। लेकिन जहन्नुम एक वक्त आएगा कि वो खत्म हो जाएगी, मगर बहुत अरसे के बाद बिलाखिर वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे कि हदीस में इसका हवाला भी वो देते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जहन्नुम खनकती हुई देग की मानिंद गुजरेगी। खनकने से मुराद तब भी होगा ना कि जब अंदर कुछ नहीं होगा। तो यहां पर वही बात आ गई, कद अहसनल्लाहु लहु रिज़्क़ा, अल्लाह ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन रिज़्क़ अता करेगा। किसके पीछे? जिसका ईमान और अमल दोनों एक जैसे।
और उसके अमल में उसका ईमान झलकता नजर आए। लक़द अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ा, यहाँ पर लफ्ज़ रिज़्क़ को समझ लें। इससे मुराद खाने पीने की चीजें नहीं, क्योंकि अक्सर मैंने आपको पहले भी बताया कि इंशाअल्लाह ताला कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि मैं अरबी के साथ इसका मुतालिया भी करूँ, मगर आप हज़रात को भी चाहिए कि अरबी के कई अल्फाजों का मतलब उसकी वजाहत उसके लफ्जों से मत करें, उसके मफ़हूम के लिहाज से नहीं। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि रिज़्क़ से मुराद सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं है, क्योंकि कुरान में अक्सर जगह पर यह लफ्ज जब रिज़्क़ सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आया, बल्कि इससे मुराद है जो कुछ भी अल्लाह ताला अता करता है, चाहे जैसे कि ज़हानत, वो भी हमारे लिए रिज़्क़ है, सलाहियत, वो भी हमारे लिए रिज़्क़ है। इन्हीं चीजों को असल में हम बरूए कार लाके वो रिज़्क़ कमाते हैं जो हमें दुनिया में, जिसको हम रिज़्क़ कहते हैं, तो ये वो रिज़्क़ है। तो इसी तरह जन्नत में सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी, बल्कि इंसान की पूरी शख्सियत की तस्कीन हासिल होगी, यानी कि उसकी सेहत, उसकी उम्र, उसका शऊर, ये तमाम चीजें एक लफ्ज में इकट्ठी कर दी गई, रिज़्क़। तो यहां पे भी बात जान लें कि जो लोग ज़हनी इतबार से बुलंद सतह पे होंगे, उनके तकाजे भी वहां पर कुछ और होंगे, क्योंकि वो यहां पर भी जिन चीजों के पीछे यानी कि खाने पीने की चीजों में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो वहां पर भी उनकी तवज्जो कुछ और होगी, और वहां जो उनकी तवज्जो होगी वो क्या होगी, फरमाया वो अल्लाह का दीदार होगा। क्योंकि यही बात हदीस में आती है कि जन्नत वालों को जो आखिरी नेमत दी जाएगी, यानी कि सबसे छोटा जन्नती भी जो होगा ना, उसको जो आखिरी नेमत दी जाएगी ना, वो है अल्लाह का दीदार। तो इस वजह से मेरे भाइयों, ये मकसद इस बात पे, इस आयत की तरफ ये भी इशारा होता है कि दुनियावी लिहाज से कुरान को पढ़कर अपने शऊर को बेदार करो, ताकि आपका शऊर उस सतह तक पहुंच जाए जहां पर अल्लाह ताला का दीदार आपको नसीब हो इंशाअल्लाह। कद अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ा, अल्लाह ने उसके नसीब अच्छे कर दिए, ये भी हम कह सकते हैं। अब जो आखिरी आयत आ रही है, उससे पहले एक बात अपने जहन में डालें, क्योंकि ये मुश्किलात कुरान में से है, और जब जब मैं आपको याद होगा, जब जब ये बात मैं कहता हूं कि ये आयत या ये लफ्ज या ये सूरत मुश्किलात कुरान में से है, तो पहले मैं हमेशा उसकी वजाहत जरूरी समझता हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरी वो बात करने से या मेरी वो बात आपके आगे वाज़िया करने से आपके ज़हन में कोई ऐसा वसवसा आ जाए जिससे आपका ईमान में कोई कमी पेश आ जाए, माज़अल्लाह। तो इसको बयान करने से पहले मैं चाहता हूं जो कुछ बातें हम पढ़ चुके हैं उसी से मुतल्लिक एक अहम बात अपने जहन में डालें। यहाँ जो कानून, तलाक के कानून की जो ताकीद की जा रही है, और फिर उसके जो इखलाकी कानून की भी ताकीद की गई, और फिर उसके ज़िमन जो हमने सख्त तरीन बातें इंजार की शक्ल में जो यहाँ पर बयान की गई, उसको भी सुना, और उसके एक नतीजा तो हमारे सामने ये निकलता है कि इनको हल्का लेना या इनको हल्का तसव्वुर करना वो हमारे लिए अजाब का जरिया बन सकता है, यानी कि उसको हल्का समझना वो ठीक नहीं। और ये बहुत अहम बुनियादी कानून है, और इसको पूरी अजमत हमारे दिलों में होनी चाहिए। यहां एक और अहम बात नोट कर लें, तलाक से मुतल्लिक जो वसवसे भी आते हैं आपके ज़हन में, कि हमारे चारों इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इन सब का मुतफक्का अलैह ये है कि अगर एक वक्त में 3 तलाकें दे दी तो वो तलाक मुखल्लस हो गई, यानी कि वो तलाक हो गई, जबकि वो बहुत बुरी है, बहुत नापसंद है, बहुत मकरूह शय है, और उसके ऊपर हजरत उमर रजी तआला अन्हु का ये अमल होता था कि जो शख्स इस तरह का अमल करता उसको कोड़े मारते। तलाक हो गई है ये अपनी, मगर उसको कोड़े पड़ते। लेकिन अकली इतबार से यहां एक बात सामने आती है कि इतने नाजुक मसले में, जिसमें खानदानों की तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, उसमें इंसान गुस्से के अंदर अगर ये कह दे तो उस पर इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना, क्या ये बात सही है? तो फिर मुझे मालूम हुआ इमाम इब्न तैमिया का एक शाज़ राय, हिकमत कुरान के बहुत बड़े आलिम हैं, और ये मेरा गुमान था कि शायद ये राय किसी और की भी होगी, क्योंकि इसी वजह से अहले हदीस इसको
اختیار کرتے ہیں, तो किसी न किसी मकतबा फिक्र की और भी राय होगी, लेकिन ये बाद में मुझे मालूम हुआ कि अहले हदीस सिर्फ ये सनद उठाते हैं इमाम इब्ने तैमिया की उस राय से जो शाज़ है. बाकी चारों फिरकों के इमाम, उनका इस पर इत्तफाक है कि 3 तलाकें अगर एक वक्त में दे दी जाएं तो वो तलाक़ मुग़ल्लज़ हो जाएगी. तो यहाँ पर मैंने आपके फिरके भी बात कराया कर दी. मगर होता ये है मेरे भाइयों के लोग ये हरकतें करके फिर रास्ते ढूंढते हैं. फिर रास्ते ढूंढने के लिए जो मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि लोग फिर अपने फिरकों को बदल लेते हैं कि जी इस फिरके में ये है तो आपको यहाँ पर कुशन मिल जाए तो आप अपना फिरका चेंज कर लें, तो इस वजह से फिर आपको ये कुशन मिल जाएगा. तो फिर लोग रास्ते ढूंढते हैं, मेरी ये नीयत नहीं थी, मेरा ये नहीं था, तो ये फिर बात की बात है. असल में इस मसले का जो दूसरी शक्ल है वो हमारे सामने है. अगर वो हमारे सामने हो तो ये तलाक से पैदा होने वाली जितनी पेचीदगियां हैं वो खत्म हो जाए. और वो दूसरा पहलू ये है कि इसके अंदर ताज़ीरात हो, जैसे कि मैंने पिछली दफा भी कहा था कि ताज़ीरात का मामला होना चाहिए, क्योंकि जो शख्स इस तरह का खेल खेलता है, यानी कि एक वक्त में 3 तलाकें दे दी, बाद में कहता फिर ये ऐसे नहीं था, मैं यूं नहीं था, मेरे से गलती हो गई, तो उसके लिए ताज़ीरात होनी चाहिए, उसको सजा दी जाए 5 साल की या 10 साल की, ताकि उसको ये बात समझ में आ जाए कि फिर मुझे गुस्सा भी सोच समझ के आना चाहिए. अगर ये ताज़ीरात की शक्ल या सजा होगी तो फिर उस गुस्सा भी सोच समझ कर आएगा. और शरीयत के अंदर इस बात की रुकावट नहीं है, क्योंकि हजरत उमर ने इस अमल को मुकम्मल पुख्तगी के साथ, सख्ती के साथ नाफिज किया. हाँ, हजूर के मामले में, हजूर की हयात तय्यबा के मामले में एक नरमी बरतते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप असल में उसी शख्स के ऊपर डाल देते कि तुम बताओ तुम्हारी नीयत 3 की थी या 1 की थी. अगर वो कहता था कि मेरी नीयत 3 की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अब ये मामला तुम्हारे हाथ से निकल. और अगर वो कहता था मेरी नीयत 1 की है तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये मामला अब तुम्हारे ऊपर ही डाल दो, यानी कि उसी के ऊपर गिर गया. लेकिन इसके सारी बातों के बावजूद जब आने वाले वक्त में, जैसे कि बाद में मामलात का मजाक बनाया गया, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ज़कात का बताया कि लोग इस तरह भी मजाक उड़ाते थे, और तलाक जिसका फिर फायदा उठाया जाता है, पहले था और है भी, वो किस लिहाज से कि आज के दौर में ढिठाई के साथ मर्द बड़ी मर्दानगी से अपना रोब दिखाने के लिए, अपना पूरा गुस्सा लाने के लिए कि मैं इसके ऊपर रोब डालूं, तो वो उसको तलाक देता है. जबकि औरत के ऊपर कितनी मुश्किल गुजरती है, आसमान जमीन एक हो गया. अगर वो तलाक मुगल्लज़ दे तो अब वो कहाँ जाएगी, क्या होगा, और उससे कितनी बर्बादी होगी. तो ये है वो सारी बातें जब इनका मजाक बनाया, जब इनको गलत इस्तेमाल किया जाता है, और फिर खानदान तबाह हो गए, और फिर कहते फिरते हैं जब हमारी नीयत ये नहीं थी, हम ये नहीं थे, फलां फलां. ये बातें मैंने इसलिए आपके आगे रखी कि फिर इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हजरत उमर रजी तआला अन्हु ने उस दौर में पुख्तगी के साथ ये फैसला कर दिया कि अगर किसी ने ये काम किया तो उसको कोड़े मारेगा. अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन, ये मुश्किलात कुरान में से है. अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और जमीन भी उन्हीं की तरह. पहले इसके अल्फाजों को समझें, यानी एक तो 7 आसमान, इससे मुराद वैसे ही 7 जमीन है, जैसे आसमान के ऊपर आसमान, फिर आसमान के ऊपर आसमान, तो इससे एक मुराद है वैसे ही 7 जमीन, या फिर उतनी ही जमीन. यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन, अल्लाह का हुक्म इन्हीं के दरमियान उतरता है. ये कुरान की बुनियादी इस्लाहत है, और इसी के दरमियान अल्लाह का हुक्म नाजिल होता है, आसमान और जमीन. असल में 2 अमर है. मैं पहले आपको इसका मफहूम समझें, आलम अमर और आलम खल्क. जैसे कि फरमाया अला लहुल खल्कु वल अम्र, आलम अमर जिसमें अल्लाह ताला का हुक्म उसी वक्त नाजिल हो जाता है, उसमें नो टाइम एलिमेंट, वक्त का कोई मामला नहीं होता. जैसे कि फरमाया सूरह यासीन में इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन, जब उसका मामला होना होता है, वो किसी चीज के लिए इरादा करता है तो सिर्फ कहता है हो जा, तो उसी वक्त हो जाता है. इसको कहते हैं आलम अमर. अल्लाह के आलम अमर में वक्त का कोई एलिमेंट नहीं. मगर आलम खल्क ये असल में निचले दर्जे की शय है,
और ये तनज़ुलात के दर्जे में भी आती है। इसको हम मादी आलम भी कहते हैं, ये हमारा आलम। इसके बारे में कहा खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम, जिसने आसमान और जमीन को और उन दोनों के माबैन जो कुछ है उसको 6 दिन में पैदा किया। तो अब जाहिरी सी बात है, यहाँ पर हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो जाती है। और ये जो दिन है ये हमारे दिनों के मुताबिक नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक दिन है वो जमीन के एक दफा घूमने पर आता है। अब इसी तरह सोचें गैलेक्सी का घूमना, उसका तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते, क्योंकि कुरान मजीद में उसकी तरफ एक इशारा हुआ कि वो 50,000 साल के बराबर है, तो हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर आलम खलक में सबसे ज्यादा अहम चीज वक्त ही है, जिसके अंदर खुद इंसान की तख्लीक 9 माह की होती है, 9 माह बाद जाके इंसान की तख्लीक मुकम्मल होती है। तो आलम अमर में नो टाइम एलिमेंट और आलम खलक में खास चीज वक्त ही है। और फिर इंसान में ये दोनों आलम फिर आके मिल जाते हैं, क्योंकि इंसान का जो मादी वजूद है, ये जिस्म जो मिट्टी से बना, इसको ये आलम खलक से बना है, और इसमें जो रूह अल्लाह ताला ने माबूस की है वो आलम अमर से है। और फिर इन्हीं के माबैन वो हुक्म अमल में आता है। और इसी बात की वजाहत सूरह सजदा में आती है, युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्ज़ सुम्मा यअरुज इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा ताउद्दून। अगर हम इस आयत का सादा मफ़हूम लें तो अल्लाह ने आसमान और जमीन बनाए और फिर अपने अर्श पर मुतकीन हो गया, और अब वहां से बैठकर तदबीर फरमाते हैं। यानी अल्लाह का जो हुक्म के तहत और उसके अहकामात के तहत, हिकमत के तहत जो दुनिया में उल्ट पुल्ट हो रही है ये मामलात, उसके अहकामात वहां से नाजिल होते हैं आसमान से जमीन की तरफ, और फिर इसकी रिपोर्ट्स अल्लाह ताला की तरफ हजूर पेश की जाती है। इसको बोलते हैं तदबीर अमर। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और जमीन भी। अब वो जमीन, जैसे कि मैंने आपको कहा, या तो वो 7 जमीनें भी हैं, ये भी एक तसव्वुर है, या आसमान जितनी, ये भी तसव्वुर है। ये तनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुम, और अल्लाह का हुक्म इनके दरमियान उतरता है। अब इसमें जो मुश्किलात वाली बात है उसको समझिए, वो है मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन, वो 7 जमीनें या उतनी ही जमीन। इस मिसल से मुराद 2 एतबारात से लिया गया है। एक कि 7 आसमान हैं वैसे ही 7 जमीनें, और फिर दूसरी इसमें किस एतबार से उतनी ही जमीन है। तो इस बारे में एक राय ये है जो कि शाज है, मैं पहले बयान कर दूं, जो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को बयान करते थे और इसको बयान करते वक्त हिचकिचाते थे, क्योंकि जब उनसे इस आयत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ये अंदेशा है कि अगर मैं ये बात तुम्हारे आगे या इस आयत का मफ़हूम तुम्हें बयान करूं तो शायद तुम लोग काफिर ना हो जाओ। तो ये आयत असल में मुतशाबिहात में से, पहली चीज इसमें से समझ लें, मुश्किलात में से, इसमें पहला लफ्ज आया 7 आसमान। ये लफ्ज कुरान में बहुत जगह पर आया है और आज तक ये बात हमारे लिए मुतशाबिहात में से है, यानी कि आज तक इंसान का इल्म वहां तक नहीं पहुंच सका कि ये बात वाज़ेह हो जाए कि 7 आसमान से मुराद क्या है। अभी तक तो हमने अपनी गैलेक्सी नहीं डिफाइन की। हाँ, बस हमारा ईमान है इस बात पर कि एक वक्त आएगा जब हमारा इल्म वहां तक पहुंच जाएगा कि ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि कुरान मजीद में जो अल्फाज लिखे हैं वो बिल्कुल सच है। इसकी एक मिसाल हमें यहाँ मिलती है, जैसे सूरह सजदा में फरमाया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक। अन करीब हम इन्हें दिखाएंगे अपनी निशानियां इस कायनात में और खुद इसके अंदर, इससे मुराद इंसान के अंदर, वो अपनी जानों में भी, यहां तक कि उनके ऊपर ये बात वाज़ेह हो जाए अन्नहुल हक, कि ये कुरान सच है। तो जैसे कि सूरह क़यामा के आखिर में और सूरह दहर के शुरू में ये मैंने बात वाज़ेह की थी, कुरान और एम्ब्रोलॉजी, ये बात मैंने वहां पर भी बयान की थी। उसके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जब उन्होंने इस चीज की तहकीक की तो पहली दफा जब इस बात को वाज़ेह किया तो वो शख्स मुसलमान हो गया, क्योंकि जब उसने ये रेफरेंस वहां पर कोट किया कि तकरीबन 14 आयात या 14 स्टेप्स कह ले
जिसके बिहाफ से ये बात वाज़ह होती है कि बच्चे की पैदाइश किस शेप से शुरू हुई और कहाँ तक गई और किस तरह वो बदलती गई। तो वो हैरान हो गया कि ये बात किस तरह अल्लाह ताला ने आज से 1444 हिजरी पहले कुरान मजीद में ये बात। तो बहुत सी सनुरीहिम आयातिना, तो ये बात उस चीज की वजाहत कर रही है कि बहुत सी आयात ऐसी हैं कि अनकरीब हम इनको इनकी दुनिया में और इनके अंदर, तो दुनिया के लिहाज से आज इंसान 1 मिनट से कहां सफर कर जाता है जहाज के जरिए, और किधर से किधर आज एक फोन के जरिए कोसों दूर बैठे हुए शख्स को फोन के जरिए भी देख रहे हैं। तो चंद लम्हों के चंद मिनटों में हजारों किलोमीटरों के फासले आज कवर हो रहे हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो भी बात वाज़ह हो गई। तो कुरान मजीद एक वक्त आएगा जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि बिल्कुल ये बात वाज़ह हो जाएगी कि जैसे 7 आसमान है, इससे मुराद क्या है। तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे ये बात वाज़ह हो जाएगी कि कुरान हक है, और ये वैसे ही है जैसे कि कुरान में लिखा है। पहले लोगों के पास इस तरह का इल्म नहीं था, साइंस इतनी तरक्की नहीं कर रही थी, इस वजह से उनको ये बातों का नहीं पता था। जैसे जैसे इल्म भरेगा बात वाज़ह हो जाएगी कि 7 आसमान से बात क्या है। तो इस बात का नतीजा फिर ये निकला कि 7 आसमान जो कुरान मजीद में कई दफा आ चुके हैं, वो हमारे लिए आज भी मुतशाबिहात में है, हमें उनका इल्म आज भी नहीं पता। मिनल अर्ज़ मिस्लाहुन, तो 7 जमीनें या उतनी ही जमीन, इस बात का कैसे पता लग सकता है जबकि वो एक दफा कुरान में। तो हकीकत जानने अभी हमारे लिए वो चीजें मुनकशिफ नहीं हुई। इस पर हजरत इब्ने अब्बास रजी ताला अन्हु का ख्याल होगा या गुमान होगा, और फिर उन्होंने ये बात सराहत के साथ भी नहीं बयान की कि ये बात मुझे हजूर से मिली या हजूर ने बताई है। अगर वो ये कहते तो फिर तो हमारे लिए ये बात काबिल कबूल थी। जैसे हजरत इब्ने अब्बास का कौल है हरूफ मुक़त्ताअत से मुतल्लिक़, ये बात मैंने पहले भी बयान की थी, यहाँ उसी का रेफरेंस मैं फिर दोबारा ला देता हूँ। हजरत इब्ने अब्बास का ये कौल है हरूफ मुक़त्ताअत से मुतल्लिक़, अलिफ लाम मीम, ये सूरह बकरा के शुरू आयात हैं, इसी तरह अलिफ लाम रा, आमीन, यासीन। तो अलिफ लाम मीम के बारे में उनका ये कौल है अनल्लाहु आलम। असल में उन्होंने ये फरमाया कि पहले लफ्ज का पहला लफ्ज, बीच के लफ्ज का बीच वाला लफ्ज और आखिरी लफ्ज का आखिरी लफ्ज ले लिया गया, इसको कहा गया है अलिफ लाम मीम। और इस बात को उम्मत ने कबूल नहीं किया, मगर हम यहाँ पर बयान जरूर कर देते हैं क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बात जैसे कि मैंने अभी कही कि हजरत इब्ने अब्बास ने सराहत के साथ इसको नहीं किया कि मुझे ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है या उन्होंने मुझे बताई है। अगर वो ये कहते तो फिर हमारे लिए उसको कबूल करना था। ये उनकी अपनी एक जाती राय है, तो अगर आप कबूल करना चाहो तो करो, नहीं तो ना करना चाहो। तो इसी तरह जब उनसे इस आयत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ये अंदेशा है कि अगर मैं ये तुम्हें बयान करूं तो हो सकता है तुम कहीं काफिर ना हो जाओ। उस आयत के मफहूम को बयान करने से पहले मैं चाहता हूं मैं उसके रेफरेंस आपके आगे रख दूं कि ये उनका कॉल कहां कहां बयान हुआ है, यानी कि कहां कहां उनके कॉल को नकल किया गया। इस बात को इब्ने जरीर लेकर आए हैं अपनी तफसील में, और फिर इब्ने अबी हाकिम जिनकी हदीस की किताब है मुस्तदरक, और फिर इमाम इब्ने बैकी उनकी किताब अस्मा व सफात, उसमें भी वो लेकर आए हैं। उन्होंने ये फरमाया हजरत इब्ने अब्बास ने कि वाक़िअतन जैसे 7 आसमान हैं वैसे ही 7 जमीनें हैं, और हर जमीन पर जैसे तुम्हारे आदम थे वैसे ही वहां पर आदम है, जैसे तुम्हारे इब्राहीम, मूसा और ईसा थे वैसे ही वहां पर मूसा और ईसा है, जैसे तुम्हारे यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वैसे ही वहां पर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर भी है। तो ये उनकी राय थी। तो ये बात ऐसी है जो आम आदमी के समझ में आने वाली नहीं है, और ये नई बात है जिसका जिक्र कहीं नहीं मिलता, किसी हदीस में नहीं मिलता, किसी जगह कुरान में भी नहीं मिलता। ये राय शाज है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सराहत से नहीं बयान हुई। जो है ये एक सुहाबी अबू जुहा नामी पर
खत्म होती है, किसी और शख्स से ये रवायत नहीं मिलती, तो लिहाजा इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश है। और फिर इस मामले में मुल्ला अली कारी की जो एक मशहूर आलिम थे, उन्होंने इस राय को मौज़ूआत में शुमार किया और कहा कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। और फिर अल्लामा अलूसी ने ये कहा है कि इसमें कोई ऐसी शय नहीं है जो अक्लन गलत हो, और कोई ऐसी शय भी नहीं है जो इस बात की नफी करे। तो बहरहाल ये एक राय है जो मैंने आपके सामने रख दी, और असलाफ में इसका ज़ेर बहस रही है ये बात, और फिर अक्सर लोगों ने इसको कबूल नहीं किया। तो यहाँ पर ये मैंने आपके आगे रेफरेंस भी बयान कर दिए, क्योंकि ये बात शाज़ तो थी, मगर रेफरेंस यहाँ पर बयान करना मेरे लिए ज़रूरी था ताकि आपको इसकी भी बात वाज़ह हो। तो जहाँ पर ये मैंने आपको सारी तफसीलात बयान की, वहाँ पर मैं इल्मी तौर पर भी मौलाना मदूदी साहब का एक हवाला भी बयान कर दूं। उन्होंने ये कहा, इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर नामी एक न्यूज़पेपर है, डेट है 1969 7/26, यानी कि 26/7/1969 के न्यूज़ में ये बात, एक जदीद एस्ट्रोनॉमी की एक राय आई कि गैलेक्सी के अंदर, जो हमारी ये गैलेक्सी है, इसके अंदर 60 करोड़ सियारे ऐसे हैं जिनके हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारी ज़मीन के, मतलब टेम्परेचर और उसका एटमॉस्फेयर सारा कुछ वैसा ही। तो ये मैंने आपको दोनों लिहाज से बात आगे कर दी। हज़रत इब्ने अब्बास का कौल कहाँ कहाँ नकल हुआ वो भी बयान कर दिया, और इल्मी बात भी आगे कर दी। बहरहाल ये एक इल्मी बात थी जो आपके आगे रख दी, वल्लाह। अब इसकी दूसरी राय उसको भी नोट कर लें कि ये असल में उसी जमीन के बारे में कहा जा रहा है जैसे कि आसमान के बारे में तबकात होते हैं। जैसे कि आसमान के 7 तबकात हैं, इसी तरह उसी जमीन के भी 7 तबकात हैं, या उसके तबकात हैं, या उसके अंदर 7 का कोई हिस्सा आता है, वल्लाह आलम। तो ये बात मैंने आपके आगे रख दी, ये मुश्किलात में से है, और रेफरेंस भी आपके आगे रख दी। अब हम आगे चलते हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए, ताकि तुम अच्छी तरह जान लो, ताकि तुम अच्छी तरह समझ लो कि यह हकीकत तुमको इसलिए बताई जा रही है कि कुरान हक है। आज तो हमारे मुशाबे में ये बात नहीं आ रही, मुनकशिफ नहीं हो रही, मगर जैसे मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया कि उस बच्चे के पैदा होने का, 7 तहों का, फिर माँ की वो तहें, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से वो बच्चे का एक साइज, यहाँ तक कि वो इतनी वजाहत बयान होगी, और अब हमने माना, जैसे कि मैंने वो रेफरेंस उस वक्त दिया था कि वो साइंटिस्ट मुसलमान हो गया, वो डॉक्टर मुसलमान हो गया। तो इसी तरह एक वक्त आएगा जब हमारा इल्म इंशाअल्लाह वहां तक पहुंच जाएगा, जब हम इस चीज को वाज़ेह समझ जाएंगे कि वाकई जो कुरान में लिखा है 7 आसमान वैसे ही 7 आसमान है, या फिर उतनी जमीनें वैसे ही जमीनें हैं। ये बात है, जैसे कि आज हमें ये मालूम होता है कि कुरान मजीद के अंदर एक लफ्ज है, मुझे बात यहां पर याद आ गई, हरारत और रोशनी। आज ये हमारी चीज क्लियर होती है, आज हम उस जदीद इल्म में पहुंच गए हैं जिसमें हमने सोलर सिस्टम लगा लिया है, और शमसी तवानाई से फोटोसिंथेसिस की उस तालीमात के जरिए हमने वो चीज को सीखा। इसी तरह जैसे सूरज की रोशनी से सोलर सिस्टम चलता है, बिजली स्टोर करता है, इसी तरह वो पत्ता, वो दरख्त सोलर से ही ताकत लेता है और अपने अंदर वो हरारत स्टोर करता है, जिसकी शक्ल में हमें लकड़ी मिलती है, और हम लकड़ी को जलाते हैं और आग होती है। ये फोटोसिंथेसिस का आज हमारे सिस्टम में क्लैरिटी हो गई। तो इसी तरह एटम्स, इंसान मर जाता है मगर उसके एटम जिंदा रह गए, तो वो जर्रात, तो अल्लाह ताला भी क़यामत वाले दिन जब इंसान को बनाएगा तो वो अक्ले इंसानी से गिरी भी कोई बात नहीं होगी, वो इल्म वहां तक इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा, तो उससे भी ये पता लग जाएगा जिसको आज हम DNA कोड कि उससे भी इंसान का पता लग जाता है। तो ये चीजें हैं जो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें मुंतशिफ हो जाएंगी जब हमारा आहिस्ता आहिस्ता वहां इल्म बढ़ेगा। और ये क्यों होगा? सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक, ताकि ये तुम्हारे ऊपर ये बात वाज़ेह हो जाए कि कुरान हक है,
اور ये क्यों बार बार कहा जा रहा है? अब मैं इसको सूरत तलाक के पर लाऊं तो वो इसी वजह से कि ये अल्लाह ताला की हदूदें हैं जो लिख दी गई हैं, और वो शदीद अजाब होगा अगर तुम उन पर अमल नहीं करोगे। अगर तुम अल्लाह के अहकामात को, जैसे कि आज के दौर में औरत और मर्द जिस तरह अल्लाह के अहकामात को आइली जिंदगी को तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो उस आइली जिंदगी को अच्छा नहीं समझते, वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से इस आइली जिंदगी की बुनियाद को चलाना चाह रहे हैं। औरत आके खानदान में आज कहती है कि ये है मेरा खामिन, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मेरी शादी इससे ही होनी है, मेरी पसंद की शादी है, मैंने इसके साथ रहना है, मैं इसको जानने के लिए, मैंने इसके साथ वक्त गुजारना है, तो शादी फिल वक्त मेरे लिए जरूरी, मैं इसको अंडरस्टैंड करना। तो ये इंडिपेंडेंट के नाम के ऊपर जो एक मकबरा खड़ा हो जाता है ना आइली जिंदगी का, ये बात वहां पर फरमाई जा रही है कि आज तुम बेहयाई का पर्दा फाड़ो और बेहयाई अपनाओगे, पर्दे फाड़ोगे, तो इस बीज से निकलने वाला, इस बीज में डलने वाली खाद जो तुमने खराब डाली है, उसका असर कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर होगा। तो एक वक्त आएगा, तो ऐसा ना हो कि ये जुल्मात के मामले में हमारे लिए वक्त आ जाए कि जब हम जहन्नुम में ना हो जाएं, अल्लाह ना करे, तो हम उस अजाब की तरफ देखें तो हम ये बात कहें कि बेशक अल्लाह ताला ने जो हिसाब हमसे लिया वो बड़ा सख्त था। जैसे हमारा इल्म यहाँ पर भर रहा है इस मामले में कि हमें अल्लाह के आयात वाज़िया नजर आ रही है, इसी तरह जहन्नुमी मामले में अल्लाह के हदूद अगर हमने तोड़ दी तो ये बात उस तरफ लाई जा रही है कि ये जान लो कि जिस तरह तुम्हारे लिए जन्नत है और उसके नीचे नहरें बह रही हैं, तो वो तुम्हारे लिए वहां पर जब ये हक हो जाएगा कुरान, तो इसी तरह जहन्नमियों के लिए वो अजाब वहां पर ये सच हो जाएगा कि बेशक अल्लाह ताला ने सही कहा कि मैं तुम्हारा सख्त अजाब। तो इसी तरह ये बात जो तुम्हें बताई जा रही है, इससे जो तुमको फायदा होना चाहिए, इससे जो नतीजा निकलना चाहिए तुम्हारी आइली जिंदगी के अंदर, तुम्हारे अमल के अंदर, आमिनु अल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात, वो नजर आनी चाहिए। और वो क्या है? लिताअलम, अगला लफ्ज़, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए, इस बात पर यकीन हो जाए, दिल ठुक जाए वाज़िया किस बात की तरफ? अल्लाह की अब वो दो सिफतें, क्योंकि अब आखिरी आयत आ गई है और आखिरी आयत पूरी सूरत का निचोड़ है। अल्लाह की दो सिफतों पर तुम्हें यकीन आ जाए। वो कौन सी दो सिफतें हैं? अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है, उसकी तख्लीक, उसकी वुसअत, उसकी खल्लाकी। जबकि दूसरी तरफ इस कायनात में तफ्तीश तुम करना चाहते हो, तुम करते रहो, अपना इल्म बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाते रहो, जितना तुम बढ़ाओगे कायनात और बढ़ती चली जाएगी। जैसे कहा सुम्मर्जिअल बसर कररतैन यनकलिब इलैकल बसरु खासियन व हुवा हसीर, फिर बार बार नजरें दोहराओ, बार बार नजरें दोहराओ, नतीजा ये होगा कि तुम्हारी नजरें थक हार कर वापस आ जाएंगी, तुम्हें इस कायनात में कोई चीज खराब नजर नहीं आएगी, कमजोरी नजर नहीं आएगी, इसमें कुछ चीज कमती नजर नहीं आएगी, ऐसा नजर नहीं होगा कि ये खराबी नहीं, ये खराबी है, अगर ये ऐसा ना होता तो ऐसा होता। तो दोहराओ इस कायनात में नजरें, देखो आसमान, अपनी तख्लीक में देखो, तो हमने तुम्हारे अंदर इल्म का इस्तेदाद रखी है, बढ़ाओ, देखो, तुम्हें महसूस होगा ये फैसला ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो किस बात का इजाफा होगा तुम्हारे अंदर? अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कोई काम ऐसा नहीं है जो अल्लाह को आजिज कर दे। वन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज को अहाते किए हुए। और यहाँ पर अल्लाह ताला की ये दो सिफतें यहाँ पर क्यों बयान हुई? क्योंकि इससे पहले किसका जिक्र किया जा रहा है? किस शख्स का जिक्र किया जा रहा है? जो ईमान लाया, नेक अमल किया और उसकी सीरत में, उसके किरदार में, उसके मामलात में ईमान नजर आ रहा है। तो यहाँ पर उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि और कुंदन की तरह साफ हो जाए, कि तेरे अंदर ये बात वाज़िया हो जाए कि अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का इल्म कामिल है। यहाँ सिफ्त से मुतल्लिक ये भी बात जान लें, अब इन दोनों सिफ्तों की अहमियत को भी जान लें कि कुरान में सबसे ज्यादा जोर इन्हीं दो सिफ्तों पे दिया गया, एक अल्लाह की कुदरत कि वो हर शय पे कादिर है, और दूसरी अल्लाह का इल्म कि अल्लाह के वो हर शय का इल्म रखता है।
क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि पहले लोगों में जो अंधेरा होगा वो ईमान का अंधेरा होगा, नीयतों का अंधेरा भी हो सकता है, मगर जो शख्स ईमान ले आया, नेक अमल कर रहा है, अब उसके अंदर कौन सा अंधेरा होगा? वसवसों का अंधेरा। ये है वो दो वसवसे। पहली बात तो ये बात जान लें कि ये सिफात वो दो हैं जिस पर बहुत से अल्लाह ताला की सिफात शरह करती जुड़ती हैं, जैसे कि अल राफि, अल हाफिज, अल मुइज़, अल मुजिल, अल बासित। ये सब कुछ क्या है? अल्लाह का उठाने वाला, गिरा देने वाला, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला। ये सब नाम एक शरह पर करते हैं, वो है अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे गिरा दे, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। और फिर इसी तरह अल्लाह समीर है, बसीर है, लतीफ है, और ये सब नाम अल्लाह के इल्म पर आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो सिफात अल्लाह ताला की बुनियादी सिफात है, इसलिए यहां पर इनका जिक्र है। अब इसमें हिकमत की बात को समझ लें कि ये दो वसवसे हैं जो उस शख्स के अंदर शैतान फूंक सकता है, चाहे वो शख्स ईमान लाया हो और नेक अमल करे, यानी कि आम इंसान की अमली मामलात में आगे। एक तो है मुसलमान के ला रहा है किस बिहाफ पर? सिर्फ कलमा पर, ईमान के लिहाज से। वो सोचता है शायद मैं इसी वजह से बच जाऊंगा, उसके फर्क में आपको बयान करूंगा। एक वो है जो अमल के लिहाज से चल रहा है। अल्लाह ताला के यहां दोनों चीजें कंसीडर की जाएगी, ईमान और अमल, और इस बात की वजाहत इमाम बुखारी ने कर दी। अगर अंदर का ईमान बढ़ेगा, आपके अमल बाहर बढ़ेंगे, आपकी नेकियां बढ़ेंगी। अगर अंदर का ईमान कम होगा, आपके अमल भी कम होंगे। उस शख्स के लिए, यानी कि इतना ऊंचा दर्जा होने के बावजूद, वो भी शख्स उन वसवसों में फंस सकता है। और वो दो वसवसे क्या हैं, वो यहां मैं बयान करने लगा हूं। एक वसवसा ये है, कैसे होगा? हम मरकर दोबारा उठाए जाएंगे, जबकि तो हम गल सड़ जाएंगे, जैसे कि कहा गया ऐज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, जबकि हमारी हड्डियां तक भी गल जाएंगी। और इसी बात को आज का कोई साइंसदान या नौजवान नमक मिर्च लगा के क्या कहेगा? हमारे तो एटम तक भी खत्म हो गए, हमारे परदादा और उसके परदादा। वो तो ये कहेगा जनाब उसके तो एटम तक खत्म हो गए, एक चीज तक, एक डीएनए तक भी नहीं बचेगा। उसके बावजूद अल्लाह ताला ये कैसे कर देगा और ये कैसे हो जाएगा? इस वसवसे का तौर है अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और ये लफ्ज हमें मिलता है इसी सूरत के शुरू में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर अल्लाह पर आपका यकीन होगा तो कैसे कर देता है? तो वैसे कर देगा जैसे मूसा के लिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने वैसे कर दिया, समुद्र को फाड़ कर मखरज बना दिया। तो वो वहां पर भी तुम्हें रिज़्क दे सकता है जहां तुम्हारा गुमान नहीं। तो ये कैसे कर देगा? वो सब कुछ कर देगा। ये है वो पहला वसवसा। तो आज का जो ईमान वाला मुसलमान है, अमल वाला मुसलमान है, वो कहां से मार खा रहा है? तवक्को के मार। उसको तवक्को नहीं आ रही, बाद में आगे तो सबको ही आ गई। एक बंदे ने कोई काम की अजाब देखा और उसने पहले हाथ ही अल्लाह से अपनी तवक्को लगा ली। एक वो है अजाब के बाद अल्लाह से तवक्को लगा ली, वो तो सब नहीं लगा लेंगे। तो फिर उसमें क्या? यहां पर बात हो रही है जो आम इंसान ईमान के मामले में बहुत आगे है। तो पहला वसवसा ये कैसे होगा, इसकी जड़ काट दी। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो कर देगा। और इस बात की वजाहत होती है सूरत तगाबुन में, फरमाया ज़ाम अल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया वो ये दावा करते हैं कि इन्हें कभी दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। कह दो क्यों नहीं, मेरा परवरदिगार की कसम तुम्हें जरूर दोबारा जिंदा किया जाएगा, फिर तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने ये कुछ किया और ये अल्लाह के लिए मामूली चीज है। जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारे तखलीक के मामले में, जैसे कि सूरत तलाक के शुरू में मैंने कहा, तखलीक का अमल ज्यादा मुश्किल है कि दोबारा पैदा करना। किसी काम को पहली दफा करना ज्यादा मुश्किल है कि दूसरी दफा, पहली दफा। इसी तरह तुम्हारी तखलीक पैदा करना ज्यादा मुश्किल है कि दोबारा जिंदा करना।
इस आसमान जो कि कहा गया 7 आसमान, उनको बनाना और इस जमीन और इसके माबैन जो कुछ है उसको बनाना ज्यादा मुश्किल है कि तुम्हारी तख्लीक को दोबारा करना। और फिर कहीं दलील के अंदाज में कहा गया इसी बात को, सुम्मा कान अलाकतन फखलक फसव्वा वजअल मिनहु ज़ौजैनि अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता। फिर वो एक लोथरे से बनाया फिर तुम्हें, फिर अल्लाह ने इसे ऐसा बना दिया कि ठीक ठीक खड़ा कर दिया। मतलब तुम्हारे नैन नक्श, ये तुम्हारी सीरत, तुम्हारी शक्ल, नेज ऐसी से मुराद फिर तुम्हारे लिए औरत और 2 सिफात और पैदा की, मर्द और औरत पैदा किया और फिर 2 सिफतें बनाई। क्या इस बात पर कादिर नहीं कि वो मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा कर दे? तो वो हस्ती जो ये सब कुछ कर सकती है, तो क्या वो हस्ती इस पर कादिर नहीं होगी कि वो तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दे? तो इस बात का नतीजा हमारे सामने ये निकलता है कि इंसान के जहन में ये बात यकीन की सतह में उठ जाए, यानी कि ये वसवसा बंद हो जाए। ये समझ लो कि उस टैंकी में जो 2 लीकेज हो रही है ना, उनमें से एक लीकेज ये बंद हो जाए कि अल्लाह हर शय पे कादिर। अगर कोई रास्ता मुझे नहीं मिल रहा, वो इस चीज पर कादिर है कि वो मुझे रास्ता निकालेगा और वो वहां से मुझे रिज़्क देगा। और रिज़्क से क्या मुराद? खाने पीने नहीं, मेरे हर मसले का हल निकालेगा वहां से भी जहां मेरा गुमान भी नहीं। और इसके लिए सबसे बड़ी दलील ये कायनात, जैसे कि मैंने आपको कही, और इंसान की खुद की तलीफ और तख्लीक। मगर वो हकीकत अलहदा बात है, हम पर आज तक मुंकशिफ नहीं हुई, क्योंकि जब इंसान ने अपनी आंख खोली, एक वो आंख जो मां के गोद में खोली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो आंख जो उसने शऊर की सतह पर खोली, आज के दौर में जो वो इल्म हासिल कर रहा है, जिस किस्म का इल्म आजकल चल रहा है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं, जिससे इंसान को पता लगता है इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तारी। उस खुद मुख्तारी के बिहाफ पर सबसे पहले उसने आइली जिंदगी को ठुकरा दी। मैं अपनी पसंद से ये काम करूंगा, मैं अपनी पसंद से अपने खानदान का बीज बोऊंगा, और उसके ऊपर वो तोड़ता है एक खबासत पर दूसरी खबासत, वो निकाह के मामले जो मैंने आपको बात कही। ये चीजें वो करता करता इस हद तक पहुंच जाता है कि जब उसकी ये आंख खुली तो उसने अपने आप को आजाद पाया। और फिर इस साइंसी इल्मी मालूमात, एक तो वो मालूमात है जो अल्लाह के नजदीक आपको लेके चलती है, वो इल्म है, एक वो इल्म है जो उससे दूर कर रहा है, फिर उसके अंदर आपने सबसे पहले अल्लाह के अहकामात को उठा के रिजेक्ट कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पर्दा, मर्द के ऊपर बेहयाई है, वो भी बात अपनी, मगर फिल वक्त बात जिस सूरत के गिर्द चल रही है वो है आइली जिंदगी, वो है पर्दा। अगर औरत सुबह से लेकर शाम तक घर पर है तो उसको यही इल्म नहीं है कि मुझे काम क्या करना है, किस पे आप पे अपनी नस्ल को बेहतर। मैं बात उस तरफ इशारे पे कर रहा हूं कि अगर मर्द जिम्मेदारी से हलाल रोटी कमा रहा है तो दूसरी तरफ औरत की जिम्मेदारी है कि उसकी नस्ल को बेहतर करे, उसको अच्छा इल्म दे, उसको अच्छी बात बताए। जब उसने खुद ही बेहयाई के लिए अपने कमरों में, अपने अड्डों पर, महफिलों की जगह पर ये ड्रामों के बेहयाइयों के अड्डे खोली, जिसकी मैंने पिछली दफा वाज़ेह मिसालें दे दी हैं कि आज के दौर में सबसे ज्यादा बिकने वाला नॉवल का बेस जो बन रहा है यूरोप में, वो यही है कि किस तरह मर्द ने अपनी औरत को या औरत ने अपने मर्द को तलाक देने के लिए या छोड़ने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल। तो यही चीज आज हमारे खूनों में, रगों में दौड़ रही है। असल मकसद यही है कि इस सूरत का कि हम इससे सिर्फ कानूनी इतबार से न समझें, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, इसका जो हिकमत का पहलू है, इखलाकी पहलू है, उसको भी आगे रखें। जिस तरह हमने कानून तो जान लिया कि पर्दा करना है, तो उसके लिए अबाए से फिर हम आगे चादर पर, और चादर से आगे हिजाब पर, और हिजाब से आगे अब स्कार्फ पर, तो हम ये सोचते हैं कि यही पर्दा है, तो ये पर्दा नहीं है। इसी तरह मर्द ने भी यही सोच लिया कि मैं अगर इल्म के बगैर, कुरान को समझे बगैर सिर्फ अपनी जिंदगी का बंदोबस्त अपनी औलाद के बैंक बैलेंस और उसी पे खर्च कर दूं, तो यही मेरा कानून है, क्योंकि हलाल तो कमा ही रहा हूं ना।
कानून तो मेरा यही कहता है ना रब का कि घर से निकलो हलाल कमाने के लिए, हलाल तो कमा रहा हूं, मगर असल जिंदगी का जो उसका मकसद था ना वो उसने बदल दिया। ये बात मैंने आपको वहां पर भी सूरह तकवीर में और इंशिकाक में तफसील के साथ बयान की। जब इंसान ने अपने ईमान की कमजोरी पाई तो सबसे पहले उसके अंदर यही वसवसा आया कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तो उसको अपनी जिंदगी का मकसद कोई नजर ना आया तो उसने उठा औलाद पर डाला कि मैं अपनी औलाद के लिए ही सिर्फ कमा रहा हूं, हलाल कमा रहा हूं ना, हलाल ही कहा था ना, जैसे ज़कात होती थी तो वही हरबे यहां पर इस्तेमाल हुए। तो यही वो बात है कि फिर आज का नौजवान फिर उन तमाम चीजों को रिजेक्ट करता है। अगर उसी इल्म के साथ, अब वो दूसरा रुख, अगर उसी के साथ ईमान हो तो ये एक ऐसी तलवार है, ऐसी सलाहियत है, ऐसी मार्फत है जो अल्लाह ताला चाहता है इंसान में आ जाए, ईमान भी और वो फिर इल्म भी, और उसको वो यकीन हासिल हो जाए और उसके ऊपर जो अल्लाह ताला की सिफात है उस पर भी यकीन हो जाए। तो फिर नतीजा क्या होगा? ऐसी सूरत पैदा होगी, ऐसा शख्स पैदा होगा जो कुरान फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म रखते हैं। अब इल्म वो साइंसी इल्म नहीं है, डॉक्टरी इल्म नहीं है, इससे मुराद अल्लाह और उसके रसूल का इल्म, वो आयात, वो आयत मुबय्यिना, वो आयत बय्यिना, वो रोशन आयात, उनका भी इल्म हो और साथ दुनियावी इल्म भी हो। ये नहीं हो दुनियावी इल्म हो, अगर वो सोचेगा कि दुनियावी इल्म है तो वो तो यही सोचेगा कि जहां मैं रह रहा हूं शायद मेरी कायनात ही यही है। अगर एक शख्स कभी लाहौर से बाहर ही नहीं गया, अपने इलाके से बाहर ही नहीं गया, तो वही तो यही समझेगा कि शायद यही है मेरी जिंदगी। और ऐसे ही लोग होते हैं, वो जब अपनी बाहर निकलता है, लोगों में देखता है, अपनी रिसर्च करता है, मालूमात लेता है, उसको नई नई चीजें पता लगती हैं, टेक्नोलॉजी पता लगती है, और अब उसके साथ उसका ईमान भी साथ जुड़ा हो, अल्लाह पर यकीन भी हो, फिर वो ऐसा शख्स सामने आएगा, उसकी वजाहत ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी जैसे कि कहा कि अल्लाह से डरने वाले बंदों में वही होते हैं जो इल्म रखते हैं, और दीन भी और दुनिया। अगर एक शख्स अल्लाह को मानता ही नहीं तो फिर उसकी सोच भी उस हद तक ही रहेगी, उसकी रेशो भी उस हद तक ही कायम रहेगी। यहां पर उसी वसवसे को बंद कर रहे हैं, उस वसवसे की जड़ काट रहे हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और यकीन कब आएगा, अल्लाह कादिर है, इसका यकीन कब आएगा? जब उसके अंदर दुनियावी मालूमात के साथ ईमान की पूंजी भी, वो भी कायम है। इसकी एक दूसरी मिसाल हम यूं भी ले सकते हैं कि जब आपके पास अच्छी जमीन ही नहीं तो काश्त कहां करें? जमीन है पर अच्छी नहीं, उस पर कुछ उग नहीं सकता। वन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, और ये है वो दूसरा वसवसा। जैसे कि मैंने आपको बताया, कहां अल्लाह के इल्म में ये सब कुछ होगा। और ये बात मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि बहुत से फलसफियों में ये मसला रहा है। ईमान उनमें होता है, ये बात नहीं है, मगर इल्म के मामले में उनका एक अजीब बात उनके जहन में है कि अल्लाह सिर्फ कुल्लियात से वाकिफ है, जुज़वियात से वाकिफ नहीं है। यानी कि अल्लाह के लिए ये जरूरी नहीं है कि इस वक्त मेरा बंदा यहां पर बैठ के या कहीं बैठ के क्या कह रहा है, उसके ये इल्म में नहीं। फिर इससे वो एक दिल में वसवसा पैदा होता है कि मैं इस कायनात में मेरी तो कोई खास हैसियत नहीं है, तो मैं यहां पर अगर कुछ कह रहा हूं या कुछ कर रहा हूं तो अल्लाह के इल्म में नहीं है। ये बात फलसफियों की है, तो कि फलसफी होने के बावजूद उनमें ये वसवसे हैं कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह अपनी ही शान में मगन, उसको कोई लेना देना नहीं है कि कौन एक बंदा इस दुनिया के किस मुल्क में, किस जगह पर, किस शहर में, किस कमरे में, किस कोठरी में क्या कर रहा है। तो ये दलील है मेरे भाइयों कि जब इतने बड़े बड़े फलसफियों के दिल में इतना वसवसा आ सकता है कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अपने उस मामले के लिए सारे मामला या सारे इल्म नहीं रखता, तो आम बंदे का क्या हाल होगा। तो ये वसवसा मुख्तलिफ रास्तों से, मुख्तलिफ गोशों से आपके अंदर घुसते हैं। तो ये मैंने आपको ईमान के आखिरी दर्जे तक के बंदे की भी मिसाल आगे रखी, मगर इंसान को तीर की तरह सीधा रखने वाली बात, इसको यकीन हो कि अल्लाह हर शय का इल्म रखता है। और इस बात को कुरान में वाज़ेह किया गया 3 असूलों से।
وہ 3 اسلوب अपनी जगह मुकम्मल है। वो क्या है? इल्म से रिलेटेड। और यअलमु मा फिस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन में जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला इसका इल्म रखता है। और यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो तुम खुल्लम खुल्ला करते हो अल्लाह उसका भी इल्म रखता है। और तीसरी है लतीफ अंदाज में, वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और अल्लाह उसका भी पूरा इल्म रखता है जो तुम्हारे दिलों के अंदर है, जिसको तुम खुद नहीं जानते। तो ये अल्लाह ताला के बड़े अहम असूल हैं, तलाक से मुतल्लिक, इद्दत से मुतल्लिक, और फिर आइली जिंदगी। अगर आप इनको आसान लेते हो, लाइटली लेते हो, तो आप अपना नुकसान कर। दूसरा, अगर तुम्हारे में ईमान है और अमल भी तुम्हारा ईमान की तरह नजर आ रहा है, तो फिर ये 2 वसवसे हैं, इनसे बच लो। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और अल्लाह ताला का इल्म मुकम्मल है। वो हर चीज का इल्म रखता है, आसमान जमीन में जो हो रहा है, जो तुम कह रहे हो, छुपा रहे हो, और एक वो जिससे तुम खुद वाकिफ नहीं हो, जो तुम्हारे दिल में। तो ये है वो अल्लाह ताला के असूल, और इन असूलों को मद्देनजर रखा जाए और उस पर यकीन किया जाए। और यही है बात वन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज का अहाता किए हुए है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम मिन आयाति ज़िक्रिल हकीम। अस्सलाम।